9:45 there. So we will start and then we'll discuss in between, because today is a totally new topic what I'm going to discuss. So we will discuss the business plan with amazing straddle. That is the topic. You may be wondering कि यार ये क्या चीज आ गया है, what is this business plan, ये कहाँ से आ गया, options के अंदर business plan क्या होता है. So we are going to link business plan and the straddle. That is the theme of the today's presentation. Now, before I start making the presentation, I just want to ask, or I expect a reply at least from 2-3 members. Do you make a business plan in the stock market? Do you make a business plan in stock market? And what do I mean by business plan means? What do you mean by the business plan in stock market? What is your working capital? What is your portfolio size or total investment made and the current valuation of your portfolio? Number of stocks in the portfolio, stop loss target, book profit target, your risk mitigation strategies, daily time required to do your trading, minimum ROI per month or annum, which is normally a business plan. Whenever you are making a business plan in any of our corporate life, anywhere, we do all these things. So what is your minimum ROI per month or per annum? And then do you trade like a retailer or a wholesaler? So can I request somebody or maybe 1 or 2 member, are they making any such business plan, and are they doing something in this line? Can I expect? I'm just stopping the presentation and then we'll listen if anybody want to share it. Sir, maybe 10 to 20% of what you have listed here, I do that, but yeah. this is mind-boggling. Okay. This is eye opener. 10 to 20% सिर्फ करता हूँ. नहीं तो कैसे करते हैं आप? वो 10 to 20% करते हैं, वो भी कैसे करते हैं? How do you plan? Yeah. जैसे एक पॉइंट था कि रिटर्न पर मंथ. अभी लास्ट 2 months में ही हम लोगों ने स्टार्ट किया कि हाउ डू वी ट्रैक दैट एंड हाउ डू वी कीप अ टारगेट फॉर रिटर्न पर मंथ कितना होना चाहिए. ऑल्दो एक टारगेट सेट किया है, बट एक्चुअल ट्रेडिंग इज नॉट रिफ्लेक्टिंग दैट. एक्चुअल ट्रेडिंग इज तो कंप्लीटली हेवायर इम्पल्स और it's very distorted, but at least आपने ये point mention किया और हमने इसके बारे में सोचा. I'm feeling good about it, but there is so much more to think through. I'm feeling like even more open-minded to learn. अभी डागा जी देखिए, when we talk about the ROI, we normally think ROI on any individual trade. Individual trade में हमने कोई options बेचा है या कोई हमने future खरीदा, तो we calculate there only invariably. Every person की ठीक है, मेरे को 2% का रिटर्न आ गया, 3% का रिटर्न आ गया on that capital what he used for that particular trade. Correct? But we are thinking of ROI from a total capital deployed perspective. तो are we considering our ROI on the basis of the total capital and total investment what we have made, and what is the money we are keeping with the broker or with the bank? Correct. Suppose we have a total trading capital and the portfolio including everything put together 50 lakh. Now, on the 50 lakh rupees, if you want to earn the 2% ROI, that means am I earning 1 lakh rupees or not? If I'm earning 1 lakh on a 50 lakh, then I can assume that I am earning a 2% ROI. Otherwise, if you say that I taken a trade of say around 1 lakh, and on that 1 lakh, if I earn 2,000 rupees, that is not the ROI. That may be on a particular trade. Correct? Yeah. Yeah. Correct. So that difference is clear in our mind. That difference is clear in our mind. मैं ऐसे कहता हूँ सर, जैसे टोटल इन्वेस्टमेंट फिनचेक शून्य ऐप में इंक्लूडिंग अवर पोर्टफोलियो प्लस कैश इन हैंड या जो भी वो लेजर में बैलेंस दिखाता है, वो टोटल अमाउंट कितना हो गया एज ऑन डेट, और मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की थी लेस करके वो मैं उस ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कैलकुलेट करता हूँ. इवन इफ सम लेटर से बीच में जैसे टीसीएस का बाईबैक आया था, तो अमाउंट मेरे बैंक में क्रेडिट आ गया था, मैंने उसको भी अपने पोर्टफोलियो में से घटा करके, यानी वो भी एक प्रकार की मैंने उसकी कॉस्ट को कम करके निकाला. सो देन वी वी कम टू नो एटलीस्ट 5-6% करके रिटर्न आ रहा है. बस उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, नॉट इंडिविजुअल ट्रेड वाइज. Are you taking on the total? या टोटल इन्वेस्टमेंट लेस टोटल पोर्टफोलियो प्लस बैलेंस कितना है, उन दोनों को डिफरेंस निकाला तो पता लगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट में कितना इंक्रीज हुआ. लेटर से मेरे टोटल इन्वेस्टमेंट थी 5.5 लाख, और वो आज की डेट में पोर्टफोलियो और जो मेरी टोटल इन्वेस्टेड पोर्टफोलियो है वो 6 लाख हो गया.
तो 6 हाँ। माइनस 5 lakhs मैंने 5.5 में से 50,000 की मेरी लेटर से इंक्रीज इन द पोर्टफोलियो हो गया, लेटर से इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट हो गया, तो वो घटा करके उस 5.5 पे कितना परसेंट बना, वो 10%, 5%, वॉट एवर इट वेरी गुड। वो आप तो कैलकुलेट करते फाइनेंस के रहते हैं एक्सपर्ट है ना, आप तो फाइनेंस के एक्सपर्ट है, तो यू कैन गिव अ लेक्चर ऑन हाउ टू डू ऑल दिस थिंग। यू आर मैंने डायरेक्टर क्या देयर किया, नेशनल फाइनेंस, सो आई मैंने नो। क्या किया, जब मैंने लेजर में ऐड किया मेरे बैंक से, वो हाँ। सारी ट्रांजैक्शन को ऐड कर दिया एक जगह पर, और जो ओके जो ओके। पोर्टफोलियो है मेरा टोटल हर महीने में या एज ऑन डेट, वो मैंने हाँ। निकाला। पोर्टफोलियो और अच्छा। लेजर में भी बैलेंस होता ही है सर थोड़ा बहुत, दोनों को ऐड करके मैंने इन्वेस्टमेंट की इतनी, और एज ऑन डेट मेरा बैलेंस हो गया इतना, सो डिफरेंस ऑफ दैट विल बी माय इंक्रीज इन माय इन्वेस्टमेंट, दैट इज वेरी व्हाट गुड आई एम वेरी saying, गुड वेरी बट गुड। नॉट पर डील वाइज, पर अच्छा, ट्रांजैक्शन वाइज नहीं कैलकुलेट कर रहा। नहीं नहीं, पर जैसे ट्रांजेक्शन अगर वाइज का तो मतलब भी नहीं है, पर ट्रांजेक्शन का कोई मतलब भी हाँ नहीं है। वी हैव टू कैलकुलेट हाँ, ऑन नहीं द टोटल बेसिस ओनली। जैसे पहले बताते थे सर आपके उस पे कि भाई मार्जिन लगाया लेटेस्ट से 2 लाख और मैंने कॉल हम्म बेची फॉर एग्जांपल, हम्म तो 2 लाख हम्म। पे कितना रिटर्न आया वो मैं नहीं कैलकुलेट कर पाता, बिकॉज या मार्जिन पर नहीं कैलकुलेट कर रहा। नहीं, हमको तो अभी कैलकुलेट तक वो भी भगवान करना की दया है। से नहीं नहीं, हाँ हमें हाँ कैलकुलेट हाँ वो भी करना है, बट ओवरऑल हमें देखना है कि टोटल हमको रिटर्न कितना आ रहा है। ठीक है ना। हाँ, बस वो अच्छा टोटल राजेश्वर जी, आप कुछ इन्वेस्टमेंट। बोलेंगे? राजेश्वर जी हमारे बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। राजेश्वर जी, आप सुन रहे हैं? मिस्टर राजेश्वर, इन्होंने म्यूट कर रखा है। हाँ हेलो। राजेश्वर हाँ जी, हाँ हाँ आप सर। बताइए थोड़ा, आप बताइए थोड़ा पोर्टफोलियो रिटर्न के बारे में। आप तो मास्टर हैं पोर्टफोलियो पूरे। अरे नहीं सर, वो मास्टर तो नहीं है। या 30 to 40% तो मिनिमम आता है पोर्टफोलियो रिटर्न। मतलब साल वही जो का। आपका बोले ना, 3% तो रेंटल आता है और 10% हाँ। एप्रिसिएशन आता है स्टॉक ओके में। ओके। तो हाउ यू 3% मॉनिटर का इट? नहीं नहीं, आप थोड़ा मॉनिटर कैसे करते हैं, बताएंगे लोगों को? सर, मैं कैसे आप? मॉनिटर सिंपली ये है कि मुझे जिस भी दिन 10% प्रॉफिट बुक मिलता है मैं बुक कर लेता हूँ। और कोई मॉनिटर की बात ये है कि हाँ, वही जो इन्होंने कहा ना कि बैंक का जो नेटवर्थ है, जैसे हाँ, जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा बैंक बैलेंस 1 करोड़ था। आज हाँ, मान लीजिए हाँ, सब स्टॉक की वैल्यू और बैंक बैलेंस मिला के या ब्रोकर के पास जो मार्जिन मनी है सब 1.5 करोड़ हो गया, तो 50 लाख इज माय प्रॉफिट दैट आई। राइट। हाँ, और मेनली क्या एक्चुअली इसके स्ट्रेटेजी लिए यूज करते हैं आप? मेनली स्ट्रेटेजीज क्या यूज करते हैं? मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजी आप कौन सा यूज करते हैं? मैं तो वही कवर्ड कॉल ही करता हूँ और उसके साथ पुट नीचे का बेच देता हूँ मार्जिन मनी, मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए। जैसे आईटीसी का है, आईटीसी का मैंने एक लॉट खरीदा, एक दूर का कॉल बेचा और एक दूर का पुट भी बेच दिया, तो राइट। मुझे डबल इनकम होता है। आईटीसी 10% एप्रिशिएट हुआ, कॉल भी 5% एप्रिशिएट हुआ, और जो पुट बेचा है वो भी 3% उसमें मिल जाता है। तो टोटल आईटीसी 10 से 15% महीना देता है। अच्छा, सेकंड थिंग ये है कि मैं दूसरा ये करता हूँ, जैसे मैंने फॉर पुट बेचा, आज आईटीसी 300 चल रहा है, मैंने पहले 260 का पुट बेचा था पिछले महीने। आपका वीडियो चालू कीजिए ना, लोग आपको देखें देखें थोड़ा। आपका वीडियो चालू कीजिए ना, थोड़ा पब्लिक आपको देख सकती है। सर, दाढ़ी वाड़ी बढ़ी हुई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, बोलिए। घर की ड्रेस में हूँ। अरे कोई नहीं चलता, अपन सबको घर की दिखती है ड्रेस सर में। आप पे। हाँ तो सर हाँ, सिंपली मैं ये जो स्ट्रेटेजी करता हूँ कि जैसे आईटीसी का पुट मैंने पहले 260 का बेचा था, 2 रुपए प्रीमियम था। आईटीसी 280 आया तो मैंने 260 वाला पुट को कवर करके 270 वाला बेच दिया। फिर आईटीसी 290 गया तो मैंने 280 वाला पुट कवर करके, क्योंकि उसका क्या हुआ, 1 रुपए डीके होगा, और 290 वाले मुझे 10 रुपए प्रीमियम मिल रहा है। 280 वाला जीरो होगा तो 3 रुपए जीरो होगा। इसी तरह मतलब बीच बीच में जैसे आईटीसी बढ़ते जा रहा है, कॉल को भी दूर वाला बढ़ाते जा रहा हूँ, और पुट को जो है नीचे वाले स्क्वायर, क्योंकि मार्जिन मेरा ब्लॉक हो जाता है अननेसेसरी। नेचुरली जीरो होता है, बट यदि मेरे पास लिमिटेड मार्जिन मनी है तो मुझे दूर का पुट है उसको स्क्वायर अप कर लेता हूँ। जीरो और अच्छा, आई टेक रिस्क, ये केवल उस टाइप की शेयर में करता है जिसमें प्रोग्रेसिव, जैसे आईटीसी है, एनटीपीसी है और आपका यूपीएस है। अभी तीसरा हाँ, सेल को मैं आजकल थोड़ा कम कर रहा हूँ क्योंकि उसमें फंसा हुआ हूँ। और नेक्स्ट है अभी एक शेयर और आइडेंटिफाई किया हूँ अभी कल ही। हाँ, याद नहीं आ रहा जस्ट। हाँ, ये पीआई में भी क्या कर रहा हूँ, मैंने 1800 का कॉल बेच के बैठा और 1740 में उसका फ्यूचर खरीदा। जैसे 1760 आया मैंने बेच दिया और 1800 के कॉल को स्क्वायर अप नहीं किया। थोड़ी देर बाद पीआई फिर मुझे 1724 में मिल गया, मैंने अगेन बाय किया, फिर 1750। क्योंकि होता क्या है कि शेयर 10 से 20% मूव होता है, 10 से 20 रुपए मूव होता है, कॉल उतना मूव नहीं होता उसका, सडनली कॉल 2-3 रुपए मूव होता। तो आई टेक दैट रिस्क कि चलो साला कॉल अगर अचानक बढ़ गया
तो मैंने जो 50 का बेचा है 60 में स्क्वायर अप करूंगा, बट मैं यहाँ 30 रुपए प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। जो हाँ। 30 रुपए जो प्रॉफिट बुक किया हूँ उसमें से 10 रुपए देता हूँ लॉस के अच्छा। लिए, कि यदि हाँ। कॉल बढ़ गया तो मैं कर लूंगा, बट वो तुरंत 10-15 में 30 रुपए नीचे मिल जाता है। पीआई अच्छा। हाईली वोलेटाइल, ओके, उसमें एक ओके, फायदा ओके। होता है। हम्म, तो ये इसमें कर रहा हूँ। ओके। और अभी एक, हाँ, बाकी कैश में तो अभी उसमें कर रहा हूँ, मैथन एलाय है और बीएसएल इंटरनेशनल। वो हाँ, जब भी 230 आता है मैं ले लेता हूँ, 250 आता है बेचता हूँ बीएसएल इंटर। हाँ, वो मैथन आपके एलाय ग्रुप में भी डालता 900, है। 960 से लेके 920 तक मूव होता है, कल 980 चला गया। ओके, गुड, 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 गुड। फ्यूचर एंड कॉल में मोस्टली यही कर रहा हूँ, ओके, फैंटास्टिक, और फैंटास्टिक। अभी अच्छा। कुछ ज्यादा मॉनिटर नहीं अभी। हाँ, एक और अभी मूवमेंट में आया है अरविंदो फार्मा, तो उसमें भी 550 में लिया हूँ, 550 का कॉल पुट दोनों बेचा। 550 का जो कॉल है वो 42 रुपीज हो गया, काफी बढ़ गया। अच्छा, और पर अच्छा। 550 का पुट वो जीरो हो गया, तो फिर मैंने 550 के बदले एक और लॉट खरीदा, वो उसमें और एक कॉल और बेचा। तो हुआ ओके, क्या कि मेरा ओके। कॉल जो पहले मैंने 30 में बेचा था, अभी 40 में एवरेज कॉस्ट 35 आई, तो 585 हुआ। और जो मैंने 550 में खरीदा था 560 में खरीदा था, तो मेरी एवरेज कॉस्ट 565 आई। इट मीन अच्छा। सिंपली इन नटशेल, कोई भी शेयर यदि आपने एक लॉट लिया है हाँ, और उसका एक दूर का फ्यूचर बेचा है, हाँ, जैसे ही लॉट 10 रुपए गिरा, फ्यूचर 2 रुपए गिरता है। तो मैं बराबर है। फ्यूचर का एक, सॉरी, फ्यूचर 2 रुपए, फ्यूचर 10 रुपए गिरता है, कॉल 2 रुपए गिरता है। बराबर। तो मैंने कॉल का एक लॉट और बेचा और फ्यूचर एक लॉट और ले लिया, तो अच्छा। मेरे लॉट एवरेजिंग हो गई, और कॉल का मेरा रेट उतना ही रहा, ओके, क्योंकि ओके, ओके। कॉल जनरली उतना नहीं गिरता है। अगर फ्यूचर 20 रुपए गिरा है तो कॉल मुश्किल 2-3 रुपए गिरता है। क्योंकि इसका डेल्टा 1 होता है, उसका डेल्टा हाफ या 0.4 होता है ना, हाँ, तो हाँ, ऑटोमेटिकली वो आपका 30-40% उस गिरेगा। केस में, उस केस में मेरा सेफ्टी मार्जिन बढ़ जाता है, बराबर, क्योंकि मेरा बराबर, एक्विजिशन बराबर। कॉस्ट कम हो गया, ऊपर से कॉल जो सेल हुआ हायर एवरेज में सेल हुआ। अभी जो मुझे 30 रुपए का मार्जिन था वो 40 रुपए का मार्जिन हो जाता है। अच्छा, अच्छा। जनरली ये ओके। सेलेक्टेड स्क्रीन में करते हैं सभी में, ऐसा भी नहीं कि सभी शेयर गिरे जा रहे हैं तो उसको एवरेज करते जा रहे हैं, फंस जाएंगे। तो ये 4-5 स्क्रिप्ट में, मैं जनरली 5 स्क्रिप्ट करता हूँ, एनटीपीसी, वेरी गुड। अरविंदो फार्मा ओके, और ओके। आईटीसी, और अभी पीआई में घुसा हूँ। पीआई में। और ओके। एचडीएफसी बैंक में भी ऐसे ही करते हैं। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ एक बहुत अच्छा शेयर है। बहुत गिर एचडीएफसी गया, लाइफ लेकिन वो बहुत गिर वो गया। कुछ नहीं सर, आप 500 का पुट हर महीने बेचिए, आपको 10 रुपए मिलेगा, किसी हाँ, भी वो रेट बात पे तो रहे सही है। वो। वो बात तो और है। जिस दिन फंसेंगे उसमें तो 490 में मिल रहा है, तो हाँ, 490 में एचडीएफसी लाइफ कहीं बुरा नहीं है। या कोई बुरा नहीं है। बराबर, बराबर। यू और आर राइट, यू दूसरा, आर राइट। ये भी हाईली वोलेटाइल है, 530 से अचानक 550 चला जाएगा, फिर 530 आ जाएगा। हाँ, हाँ, अभी तो वापस 530 के पास आ रहा हाँ, है वो। हाँ, तो राइट, राइट, उसमें राइट। यही है, उसमें आप 550 का कॉल, उसका भी 8-9 रुपए में बिक रहा है, और 534 में मिल रहा है, तो हाँ, आपका तो एक्विजिशन कॉस्ट उसका 525 के आसपास पड़ रहा है ना। बराबर, 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 फिर जैसे ही बराबर। वो 10 रुपए गिरा, एक लॉट और लिए और एक कॉल और दूर का हाँ, बेच दिए। कॉल तो 1 रुपए गिरता है, शेयर 10 रुपए गिरता है। तो एचडीएफसी लाइफ में भी ये कर सकते हैं। बाकी सर शर्ट पहन के आता हूँ फिर बैठता हूँ। अरे मुश्किल चला गया इसका। और कोई किसी कोई क्वेरी है तो पूछ लें। हाँ, सर, अच्छा। हाँ, बोलिए। सॉरी कोठारी जी, तो राजेश्वर जी से पूछना था, आप अपने जो मार्जिन है उसको कैसे सर ऑप्टिमम लेवल पे रखते हैं, कि कौन से स्ट्राइक पे कॉल और पुट करके जो मार्जिन ब्रोकर को अपने देने रहते हैं वो कैसे डिटरमिन करते हैं सर, कि अपना बेस कम रहे, जिससे आरओआई विल लुक बेटर? नहीं सर, मेरा एक्चुअली क्या है, बहुत हाई मार्जिन ब्रोकर के पास आइडल पड़ा हुआ है। हाँ, बिकॉज क्या है कि मेरे पास इक्विटी काफी है, तो इक्विटी मॉर्गेज करके अच्छा, मुझे मतलब मार्जिन 8 फिगर्स में मिला है। ओके, ओके। तो उसमें से मैं हार्डली 40 से 50 लाख यूज करता, पूरा 1 करोड़ यूज नहीं करता। गॉट इट, गॉट इट। हाँ, वो इसीलिए कि क्या होता है कि मान लो सर, मैंने जो पुट बेचा है, अक्सर मैं बायोकॉन का पुट बहुत बेचता हूँ। बायोकॉन का पुट मैं पिछले 1 साल से हर महीने 300-290 का बेच रहा हूँ। आज भी 290 का बायोकॉन 6 रुपए में बिक रहा है। हाँ, और आपको बायोकॉन 315 से 320 चलता रहता है। मुझे पता है बायोकॉन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, अगर मुझे इसके 10 लॉट की डिलीवरी लेनी मैं ले लूंगा। गॉट इट, गॉट बट इट। फॉर्चुनेटली ये हो रहा है कि हर महीने बायोकॉन 4 रुपए दे रहा है। तो 25 चौके 10,000 रुपए हर महीने देता है एक लॉट में। 2 लॉट आप बेचो, 20,000 रुपए मैंने आपका कहीं नहीं गया। तो बायोकॉन का, हाँ, बायोकॉन का कॉल बेचने की गलती मत करना यदि आपका होल्डिंग नहीं है तो। ओके। हाँ, क्योंकि वो तो किसी में भी नहीं करना है। 10% किसी दिन चला जाएगा। वो तो किसी में भी नहीं करना है। किसी में भी अगर आपने नहीं, अगर कॉल बेच दिया हाँ, और अगर हाँ, नहीं है तो फंस सकते हो हाँ, पूरे।
या फिर हाँ, फ्यूचर खरीदना जैसे बहुत जरूरी आप है? देखिएगा या अरविंदो फार्मा में एक दिन लोग ट्रैप होंगे, किसी भी दिन 20% सर्किट मार देगा, राइट 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 राइट। जो कॉल सेलर है फंसेंगे। तो बात अगर तो है। होल्डिंग है तो बेचिए आप। सही और बात, हाँ, एक और स्ट्रेटेजी है अरविंदो फार्मा, जैसे मैंने 550 चल रहा था, 600 का कॉल बेचा था, उस समय 10 रुपए में बिक गया था सितंबर का। हाँ थोड़े दिन बाद वो हुआ, मुझे 6 रुपए मिल गया, मैंने वापस हाँ स्क्वायर अप कर लिया, मैं उसको जीरो होने का वेट नहीं किया। राइट, तो वो तो है। जनरली आप जब भी दूर का कॉल अगर साथ में कवर्ड कॉल बेचते हैं, 2 कॉल, जैसे आपका एक लॉट है, एक तो आप ओटीएम में बेच दीजिए, इंडी मनी बेच दीजिए, एक दूर का बेचिए। और दूर का कॉल यदि आपको 3 दिन में या 5 दिन में 50% प्रॉफिट दे रहा है, विदाउट एनी हेजिटेशन बुक कर लीजिए, उसका जीरो होने का इंतजार मत करिए, क्योंकि वो सडनली स्पर्ट होगा, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सही बात, सही बहुत बात। बहुत सारे शेयर हैं, जैसे बीच में Okay. कई लोग एचडीएफसी बैंक में फंसे थे, जब वो मर्जर वाला था, वो 1300-1700 चला गया था, तो डबल कॉलर जितने थे, जिन्होंने दूर दूर का बेचे थे, 1600-1700 का भी कॉल बेचे, सब ट्रैप हुए थे। मैं कई लोग को जानता हूँ जो लोग 1 करोड़ से उतरे हैं उसमें। अच्छा। हाँ, 10-10 लाख, 10-10 लाख। क्या हुआ ना, 1300 1350 चल रहा था, उन्होंने बोला 1600 तो जाएगा नहीं, 1600 के 10 लॉट बेच के बैठ गए। अच्छा। बाद में वो 1700 चला गया, 100 रुपए पर शेयर उनको लॉस हुआ। 55,000 शेयर में आप लीजिए 100 में कितना लॉस हुआ है। पर सर वो पुट भी राइट किए रहेंगे ना? नहीं, पुट अच्छा, राइट कोई नहीं अच्छा। करता। पुट राइट लोग सोचते हैं पैसा वेस्टेज है। अच्छा, तो और पुट कोई खरीदते बिजनेस नहीं है प्लान के लोग। बारे में बताना चाहता है? और कोई बिजनेस प्लान के बारे में बताना चाहता है? Anybody want to discuss on the business plan? If anybody is making or they are trading or they are doing something in the business plan, चलिए. Okay, then I will start presentation again. देखा, अनु ग्रुप में मुझे एक्सपर्ट माना जाता है। जबकि इसमें 300-400 लोग हैं, आजकल 500 हो गए। Okay, so this we know कि normally how the business plan is made. You should know about the working capital, what is our investment, and then how we are calculating our ROI. Are we taking any stop loss target? Are we keeping a book profit target? What are risk mitigation thing? How much time we need for doing our trading? All those things are a part of the normally any business plan. Now the last plan what I made is, do you trade like a retailer or a wholesaler? Do you trade like a retailer or wholesaler? Retailer is a person who buy 100 share, book a profit, about 200 rupees, 300 rupees, again buy 100 share, again book a profit, or when the share is falling, he is going and buying 50 share, or when he's selling for every 2 rupees increase, he will sell. Those are the retailers, or they will trade in a huge portfolio. They will have a portfolio of some 50 stock, 100 stock. They all are the retailers. Now the question is here is, retailer versus wholesaler, what are the benefits or what are their characteristics? So if we see a retailer and wholesaler, the working capital of retailer is very low. Wholesaler is working capital is obviously is a very high. Turnover or volume for a retailer will be very low. Wholesaler will be high. Idle inventory in case of retailer is very high. Wholesaler is low. Turnover low, high. Like that I mentioned, these all are the features of a retailer and the wholesaler. Say for gross profit will be very low. Here it is high. All those things are there. Now the issue is कि you would like to be a retailer or a wholesaler. Do you want to trade like a vegetable का जो अपने घर के बाहर एक भाजी वाला होता है? Do you want to trade like that कि सामान लेके आए, शाम को बेचा और वापस घर में बैठ गए? Or you want to trade like a wholesaler? So ये मैं why I am telling all this thing कि ये सारा analogy मैं आपको जो मेरा स्ट्रेडल में वहां पे लेके जाऊंगा मैं. That is the reason I am just giving you a background कि business plan क्या होता है, कैसे business plan लोग बनाते हैं, and what are the retailer and wholesaler. Similarly in the share market, do we trade like a retailer and wholesaler? Let's see in the share market how the retailer and wholesaler think. The working capital, whether you have a small or large, it will depend or it will decide कि you are basically a retail trader or you are a wholesaler or you are a big player, small or large. Then your deal in the large portfolio or a very few script. Now here you have to clearly think कि large portfolio or a very few script. You may be having 100 script, you may be having 50 script, or you may be having only 2 or 3 script. Invariably you will see the wholesaler trade in only 1 or 2 or 3 script.
Whereas a retail person like all of us, we trade in a large portfolio. Somebody may be having 100 shares, somebody may be having 50 shares, and I call this as a cancer. When you have a 100 share portfolio or when you have a 70 shares portfolio, it is a cancer in your portfolio. It is a cancer basically. Whereas in a wholesaler, he will trade in a few script, selected script, but he will be totally focused. Let's see how. So a retailer, he will not bother about the portfolio. He will buy. किसी ने टिप दिया, अरे यार आज जो है HDFC बहुत अच्छा है, वो जाके HDFC के 5 शेयर ले लेगा. कल कोई दूसरा बोलेगा कि यार वो मेरे को जो ITC में बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, वो ITC के 50 शेयर ले लेगा. कभी वो रिलायंस का ले लेगा. तो ऐसा करके जो है वो रिटेल वाला खरीदता रहता है. Then he will not bother. Their shares will be lying there. Appreciation होगा, किसी में नहीं होगा. Maybe the end of the day, we don't know whether he will be plus or not, कुछ पता नहीं है. But वो खरीदता रहता है, कभी-कभी बेचता भी रहता है. Wholesaler जो होगा, he monitor very closely about his script because he is dealing in very few scripts. So again a retailer, he will trade in the small trade, 100 शेयर खरीदेगा, 50 शेयर करेगा, या Infosys का है तो 2 शेयर लेगा. और जबकि जो बड़ा वाला जो होगा, wholesaler होगा, he will deal in the large quantity. Now a retailer waiting for a further fall, वो क्या करेगा, कोई शेयर गिरेगा ना तो और बोलता है थोड़ा और गिर जाए तब मैं खरीदूंगा, और वो अपॉर्चुनिटी he may not get at all. Whereas the wholesaler or the big player, he will buy more quantity if target buy rate is. उसको पता है कि अगर जैसे मेरा HDFC लाइफ का, जैसे राजेश्वर जी एग्जांपल दे रहे थे कि अगर मेरा वो 490 480 आ गया तो आंख बंद कर करके वो HDFC लाइफ ले लेगा, क्योंकि HDFC लाइफ इज वेरी गुड. जबकि रिटेलर क्या करेगा, वो 10 शेयर खरीदेगा 490 के अंदर. ही विल वेट कि यार 490 के नीचे आएगा तो फिर मैं 10 शेयर और ले लूंगा. वो उसके बाद आएगा ही नहीं कभी, वो 490 से घूम के फिर ऊपर ही चला जाएगा. सो देयर इज अगेन अ डिफरेंस. वेटिंग फॉर फर्दर राइज और सेल फुल क्वांटिटी इफ टारगेट सेल इज रीच. तो रिटेल जो होता है वो जब शेयर बढ़ने लगता है तो बोलेगा मैं थोड़ा थोड़ा करके बेचूंगा, 2 शेयर 5 शेयर 100 शेयर बेचूंगा. और जो आपका बड़ा प्लेयर होता है वो पूरा क्वांटिटी बेच के अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाता है. सो वेट एंड वेट फॉर ए ह्यूज गेन. जो रिटेल होता है वो वेट ही वेट करता रहता है, और वो वेट ही होता रहता है. और जो आपका बड़ा प्लेयर है, वेट फॉर द एंट्री एट द राइट प्राइस एंड एग्जिट विद ह्यूज प्रॉफिट विद लार्ज क्वांटिटी. ये सारा एनालॉजी अपना ये स्ट्रगल में आने वाला है, तो उसका मैं बैकग्राउंड आपको दे रहा हूँ. That do not bother about the price movement. जो रिटेल वाला होता है, जो 100 शेयर है, वो ट्रैक करेगा, तो he will not bother. उसने खरीद लिया, पड़े हुए शेयर ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, क्या हो रहा है उसको कुछ पता नहीं है, ना उसको पता है ना किसी को पता है. और जबकि जो बड़ा वाला जो है, he will keep focus on the price movements very very closely. अगेन जो रिटेल है, ही कीप एन ऑलरेडी टारगेट ऑफ ROI 12%. यार चलो निफ्टी का रिटर्न 12-15% आता है, म्यूचुअल फंड का रिटर्न आपका 10% आ रहा है, तो ही इज हैप्पी विद 12 to 15% रिटर्न एज फार ए रिटेलर इज कंसर्न. होलसेलर है, जो बड़ा प्लेयर है, उसको महीने का 2 से 4% का रिटर्न चाहिए. नाउ वी हैव टू थिंक हु इज द रियल बिजनेसमैन. द बिजनेसमैन इज द रिटेल ट्रेडर और अ बिजनेसमैन इज द होलसेलर. हाउ एनी बिजनेसमैन डू द बिजनेस. वो कैसा बिजनेस करते हैं वो लोग. जैसे अपना मुकेश अंबानी ले लीजिए, या अपने बिरला ले लो, या अपना इवन घर के बाहर का वो भी वो ले लो. डू दे टारगेट अ मंथली रिटर्न और दे डू टारगेट अ एनुअल रिटर्न. तो कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे वो सामान खरीदते हैं, कैसे सामान बेचते हैं. तो वी विल सी आर वी ए रियल बिजनेसमैन. नाउ मोस्ट ऑफ आवर मेंबर्स, I will say 100%, not even 90%, 100% are a successful corporate managers. We all are successful corporate managers in our official life. But when it comes to a share market, we behave like a vegetable retailer. Exactly vegetable retailer जो होता है उससे हम उससे behave करते हैं, और उससे हम लोग ट्रेड करते हैं. We get panicky in the market crash or in the rally, or well prepared for the crash or rally. जो wholesaler होता है, he is well prepared. Because he has taken his mitigations, he has taken his all the risk mitigation strategies. और जो रिटेलर वाला होता है, मार्केट क्रैश में वो बेच के निकल जाएगा, वो ऊपर जाएगा तो और खरीद लेता है वो. When he sees the stock is going up, he start buying it. When the stock is falling, he will sell. जबकि जो आपका होलसेलर होता है वो डिफरेंट उस तरह से वो ट्रेड करता है. तो इशू अगेन आ रहा है कि डू यू मेक योर मंथली बिजनेस प्लान कि इस महीने में मेरे को इतना प्रॉफिट निकालना है, इस महीने में मेरे को इतना ROI लेके आना है. डू यू मेक और नॉट. इफ यू आर नॉट मेकिंग, दैट मीन्स कि आप वो जैसे वो लहरें चलती है ना, वो लहरें कभी इधर चल रही है उधर चल रही है, अब ऐसा ही हम लोग काम कर रहे हैं. और आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पब्लिक, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, दे आर नॉट मेकिंग बिजनेस प्लान एंड दे आर जस्ट, अगर नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है वो खरीदते रहते हैं बेचते रहते हैं. कुछ पता नहीं है कि उनको रिटर्न कितना आ रहा है, कितना उनका एप्रिसिएशन हो रहा है, कितना रिटर्न आ रहा है, कुछ नहीं, सब भगवान भरोसे है.
So now let us understand the straddle. Now इस background के अंदर let us understand कि straddle को हम अपने business plan के अंदर how we can use it, or can we have the straddle as a strategy with the business plan. So that was the theme of the whole presentation. And then let's first understand कि straddle होता क्या है. तो short straddle का जो thought process है वो क्या है कि what is straddle? तो selling ATM call and put of the same strike price is called a short straddle. मतलब कोई भी जो शेयर है उसका जो ATM का कॉल और ATM का पुट आप सेम स्ट्राइक का या उसके जो 2-4 रुपए ऊपर नीचे का जो भी सेम स्ट्राइक का अगर आप कॉल या पुट बेच रहे हो तो दैट इज नॉन एज ए स्ट्रेडल. उसको बेच रहे हो तो इट इज ए शॉर्ट स्ट्रेडल और खरीद रहे हो तो इट इज ए लॉन्ग स्ट्रेडल. तो वी आर टुडे डिस्कसिंग मेनली अबाउट द शॉर्ट स्ट्रेडल. तो ये शॉर्ट स्ट्रेडल का एक वो है, ये इसका एक आपका जो चार्ट है, इसमें अगर आप those who are knowing की those who knows की how the call and put operate and how this chart is made or how this P&L or maybe this profit chart is shown, you can show कि there is a middle line, then a green line and the red line. तो जो green portion है that is your profit side है और जो आपका red है वो आपके लॉस होता है और लॉस में आपको अनलिमिटेड लॉस होता है. तो उस मिडिल लाइन जो है वहां पे आपके ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं. डाउन साइड में ब्रेक इवन है, अप साइड में ब्रेक इवन है, उसके ऊपर में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है, बीच वाला जो है आपका ब्रेक इवन रेंज है और नीचे आपका जब शेयर अगर चला जाता है तो यू गो फॉर अनलिमिटेड लॉस एंड अगर शेयर आपका ऊपर चला गया तो देन अगेन यू गो फॉर अनलिमिटेड लॉस. सो व्हाई डू ट्रेडर्स लाइक शॉर्ट ट्रेडल? अगर आपको अनलिमिटेड लॉस अगर होने का चांसेस है देन स्टिल देन व्हाई डू ट्रेडर्स लाइक, व्हाई द होलसेलर्स लाइक द short straddles? The highest theta or highest premium is collected in a straddle. Number one जो main reason जो है, जो थीटा का जो बेनिफिट जो मिल रहा है या जो हाईएस्ट प्रीमियम जो मिल रहा है वो आपको स्ट्रेडल के अंदर मिलता है. नंबर 1, इफ द व्यू इज राइट इट कैन टर्न इनटू ए जैकपॉट ट्रेड. मतलब कि जबरदस्त आपको रेंटल इनकम मिलता है अगर आपका व्यू राइट हो गया कि भाई वो अगर एक्सपायरी पे आपका एटीएम पे अगर वो स्ट्राइक एक्सपायर हो गया आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, देन यू गेट अ जैकपॉट. और इवन ब्रेक इवन के नीचे रह गया इवन देन यू गेट अ वेरी गुड रेंटल. सो दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन एंड दे नो कि भाई जो है वो स्ट्राइक जो इतना क्लोजली मॉनिटर करते हैं वो स्टॉक को, उनको पता है कि ये इससे ज्यादा मूवमेंट नहीं करेगा. अब जैसे आईटीसी है तो आईटीसी लोगों को पता है कि ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के अंदर वो 20 रुपए के आसपास मूव करेगा, तो वो नीचे का जो है या तो कॉल पुट बेचेंगे या उतने का बेचेंगे तो इतना प्रीमियम लेने का कोशिश करेंगे कि अगर वो चला भी जाए तो उसमें उनको कवर हो जाए. सो ऑल दो स्ट्रेटेजी दे कैन टेक इट. तो स्ट्रेडल विल वर्क बेस्ट व्हेन द व्यू इज नाइदर बुलिश नॉर बेयरिश बट साइडवेज होता है, तो उसके अंदर आपका ये सबसे अच्छा रिजल्ट देता है. देन ओके, तो पर्क्स ऑफ स्ट्रेडल यानी कि स्ट्रेडल से आपके क्या एडवांटेजेस हैं. नंबर 1 इज हाई प्रोबेबिलिटी, मोर देन 60% ऑफ द विनिंग चांस. मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज योर मोर देन 60%. बिग रेंज कैन ट्रेड. स्क्रीन पर कुछ भी लिखा नहीं आ रहा है. स्क्रीन नहीं दे रहा, आप नजर आ रहा? पॉइंट्स नहीं आ रहे, खाली एक ब्लैंक स्लाइड है. एक मिनट रिज्यूम शेयर मैंने किया अभी. अब अभी दिख रहा है आपको? कैन यू सी नाउ? हां स्क्रीन. हां जी सर. Okay, so the perks of straddles, one is the higher probability, more than 60% winning chance. Big range, you can trade in bi-weekly, monthly or far months to get a wider range. Even you can trade in the weekly also, but it is always advisable to go a bi-weekly, monthly or far months to get a wider range. A low stop loss can get you out of a small stop loss if you trade based on the premiums. Then the last is the adjustments. You can increase your break-evens by deploying another straddle, using futures or moving your winning legs. All those you can do. The adjustments are very, very easy. Straddle adjustments are one of the most easier than any other spread or any other thing. The most easy, very, very easy to move your adjustments. And then this line, very high probability of getting 50% of max rental of next month in next month. Can somebody explain this line? अगर ये लाइन आपको समझ में आ गया तो पूरा प्रेजेंटेशन आपको मेरा समझ में आ जाएगा. Very high probability of getting 50% of max rental of next month in next month. ढाका जी आप बोलेंगे?
सो जो रेंटल इनकम होने का जो चांस है, हाँ 50% of that you will get it within the next month is a very very high probability. मतलब I'm just kind of rephrasing, but उसको और कैसे एक्सप्लेन करूं समझ में नहीं आ रहा. अभी जैसे एग्जांपल बताऊं, जैसे भी मान लीजिए कोई भी एक शेयर है, जैसे मैं यूपीएल मेरा फेवरेट है, ठीक है, तो यूपीएल का अगर आप करंट मंथ का अगर आप स्ट्रेडल का अगर आप प्रीमियम देखोगे तो दैट इज अराउंड 30 to 40 रुपीज है करंट मंथ का. मतलब अगस्त का अगर आप जो स्ट्रेडल का प्रीमियम देखोगे तो टोटल प्रीमियम जो है करीबन 40 रुपीज आपको मिल रहा होगा, ठीक है. नेक्स्ट महीने का जो आपको स्ट्रेडल है वो आपको मिल रहा होगा समवेयर अराउंड 60 to 70 रुपीज, ठीक है. कोई भी ले लो आप, तो ये महीने का जो होगा उसका अगले महीने का या तो डबल रहेगा या डबल से थोड़ा सा कम रहेगा. अभी आप थोड़ा सा ये सोचिए कि इसका मतलब ये है कि जब अगले महीने पे आप जाएंगे, जब आप नेक्स्ट मंथ में पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपका जो 60-70 रुपीज था वो वापस ये जो करंट महीने वाला वो अगले महीने में ये करंट मंथ हो जाएगा. यानी कि आपने अगस्त में सितंबर का लिया तो आपको स्ट्रेडल का प्रीमियम मिल रहा है मान लो 70 रुपीज और करंट मंथ का मिल रहा है आपको 35 रुपीज मान लीजिए. इसका मतलब ये है कि जब आप नेक्स्ट मंथ में जाओगे तो नेक्स्ट मंथ के वो ऑटोमेटिकली थीटा डीके होके वो 35 रुपीज आएगा, वो भी आना चाहिए ना. लॉजिक ये बोल रहा है कि हर महीने का जो है वो 35 रुपए का उसका स्ट्रेडल का प्रीमियम है. तो ये महीने का 35, अगले महीने का 35, तो अगले महीने का अपने को भी 70 मिल रहा है, तो ये 70 वाला प्रीमियम अगले महीने में 35 हो जाएगा, बराबर है. क्योंकि करंट मंथ का प्रीमियम 35 चलता है, तो अगले महीने का 35 हो जाएगा. इसका मतलब है कि वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, अगर आपका ये टारगेट ये हो कि भाई मेरा वो 70 से जैसे ही 35 हो जाएगा मैं एग्जिट कर जाऊंगा. 70 का जैसे ही मेरा प्रीमियम 35 हो जाएगा मैं एग्जिट करके फिर मैं उसका अगले महीने में चला जाऊंगा. यानी कि मैं अगस्त के महीने में मैं सितंबर का करूंगा, और सितंबर के महीने में मैं अक्टूबर का करूंगा, और अक्टूबर के महीने में नवंबर का करूंगा, और जैसे ही मुझे 50% का रेंटल आ जाएगा मैं वहां से एग्जिट कर जाऊंगा मैं. तो ये जो चीज है इसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है. यू कैन से ऑलमोस्ट आई विल से मोर देन 90% प्रोबेबिलिटी है आपका, अनलेस कि वो शेयर 20% ऊपर नीचे भाग जाए तो बात अलग है. बस जो बड़े वाले शेयर होते हैं, जो आपके निफ्टी के जो शेयर्स हैं, निफ्टी 50 के जो शेयर्स हैं, उसके अंदर इनवेरिएबली कोई भी शेयर आपका एक महीने में 20% 25% नहीं बढ़ेगा. मुझे नहीं याद है कि कोई भी शेयर 20-25% एक महीने में बढ़ा हो या 2 महीने में बढ़ा हो. वो 5-10% ऊपर नीचे घूमते रहते हैं, दैट्स ऑल. हो सकता है साल में एक आधी बार कोई हो जाए, वो बात अलग है. जैसे कोई डॉक्टर रेड्डीज है और कोई बहुत खराब न्यूज आ गया तो एकदम से वो आपका 20% गिर गया था, बट वो आके वापस उसी रेट पे आ गए वो सारे शेयर. सो अगर हम ये स्ट्रेटेजी को अगर हम ये ले लें कि मैं अगले महीने का स्ट्रेडल बेचूंगा और जैसे ही मुझे 50% रेंटल उसमें मिल जाएगा मैं एग्जिट कर जाऊंगा. अगर आपको लाइन अगर आपको समझ में आ गई और ये अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिर आपको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है. मतलब कि दैट मींस कि मोर देन 90% यू विल विनिंग. या तो मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि सितंबर मंथ का अभी कोई भी एग्जांपल ले लिए, यूपीएल फॉर एग्जांपल ही ले लिए, अगर उस स्ट्रेडल का भाव आज 70 रुपया है, जब वो 35 रुपीज आया आप उसको बुक कर लो और आप उसको रोल ओवर कर लो नेक्स्ट साइकिल के लिए. फर्स्ट क्लास, फैंटास्टिक. वही है, बिल्कुल वही है, Okay. बिल्कुल वही है. किसी और को डाउट है इसके ऊपर? क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ इसके ऊपर? नहीं सर, इसमें डाउट नहीं है. आप 3-4 एग्जांपल बता दीजिए जो स्क्रिप्ट नहीं, मैं बताऊंगा. हाँ. नहीं, मेरा पूरा एग्जांपल है, वो सारा मैं बताने वाला हूँ. नहीं, कॉन्सेप्ट किसी को समझ में आया है नहीं आया तो मुझे पूछिए अभी. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से अगेन ये है कि ये महीने में मेरे को अगले महीने का स्ट्रेडल बेचना है, ये महीने का स्ट्रेडल मुझे नहीं बेचना है. अगले महीने का स्ट्रेडल बेचना है. इनवेरिएबली आप देखोगे, आप खुद जाके ऑप्शन चेन में जाके आपको चेक करना है. आप देख लो ये महीने का स्ट्रेडल और अगले महीने के स्ट्रेडल में ऑलमोस्ट डबल का फर्क रहता है. यानी कि अगले महीने का अगर 20 रुपया है तो ये महीने का करीबन 10-11 रुपया चल रहा होगा. अपने को अगले महीने वाला स्ट्रेडल बेचना है, और जैसे ही वो अगले महीने का स्ट्रेडल आपका 50% रेट पे आ जाए, अपने को रोल ओवर करके उसके अगले महीने में चले जाना है, और ऐसे करके हमको हर महीने हमारा आरओआई निकालना है. दैट इज द होल कांसेप्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन. ओके, या तो टेक्निकली स्पीकिंग इट शुड बी लो बीटा स्टॉक्स. कोई जरूरी नहीं है. लो बीटा में तो फिर बहुत ही कम प्रीमियम मिलने वाला है. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लो बीटा ही हो. इवन आपको अच्छा शेयर लेना है, जैसे यूपीएल हो गया, भारती है, रिलायंस है, ये दीज आर गुड शेयर, फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर. अब आपको वो इंडिया बुल हाउसिंग और आपको आरबीएल बैंक और आपको बंधन बैंक वो वाले शेयर नहीं लेना है.
नहीं नहीं नहीं, ओके वो AU बैंक हो गया, ये वाले शेयर्स नहीं लेने। इवन सेल आई विल नॉट से इज अ फंडामेंटल, आई डोंट कंसीडर सेल एज ए वेरी फंडामेंटली स्ट्रांग। इट्स अ साइक्लिकल स्टॉक है, कहाँ चला जाएगा हाँ, पता नहीं है। NMDC है, कुछ पता नहीं है, वो 100 रुपए आ गया चला जाएगा। वेदांता का पता नहीं है। जो फंडामेंटली स्ट्रांग जो सेंसेक्स का 30 शेयर्स है वो तो बहुत ही सेफ है। इवन यू कैन गो फॉर निफ्टी 50 फंडामेंटली स्ट्रांग एंड हाई लिक्विडिटी स्टॉक। हाई लिक्विडिटी, वो तो खैर रिक्वायरमेंट अपना है। और निफ्टी के स्टॉक तो हाई लिक्विडिटी रहेगा ही रहेगा ना। अगर लिक्विडिटी नहीं है तो वो निफ्टी में आ ही नहीं सकता शेयर। वो निफ्टी में आने का मतलब ये है कि करनी पड़ती है क्या ओनली इन स्टॉक्स नॉट इन इंडेक्स। नहीं, आई एम टॉकिंग ओनली द स्टॉक्स, इंडेक्सेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, क्योंकि आज अपन इसमें बिजनेस प्लान की applicable बात नहीं कर होगा रहे ये। हैं। नहीं, टुडे वी आर टॉकिंग ऑन द applicable बिजनेस नहीं होगा। प्लान। वेलिया जी, आज अपन बिजनेस प्लान की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस प्लान के No, what अंदर I'm saying is- इंडेक्सेस, हां या नो ये रूल्स आई एम टेलिंग उसमें इंडेक्स में अप्लाई नहीं होगा बोल रहे हैं क्या? ये जो 50% दिखे नहीं, उसमें इशू क्या है, इंडेक्सेस में सबसे बड़ा इशू जो है, चाहे करेंसी हो, चाहे आपका बैंक निफ्टी हो, निफ्टी हो, आई कैन नॉट टेक द डिलीवरी, आई कैन नॉट गिव द डिलीवरी। सो दैट इज द रीजन आई कैन नॉट मेक अ बिजनेस प्लान। टुडे आई एम ट्राइंग टू टीच यू अ बिजनेस प्लान। मेरे को बिजनेस प्लान कैसे बनाना है और उससे मुझे ROI कैसे निकालना है, और हर महीने का मेरा बिजनेस प्लान निकालना। आई एम टुडे ऑपरेटिंग और ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेसमैन। वो मेरा सारा स्ट्रेटेजी में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। इंडाइसेस में वो बिजनेस प्लान नहीं काम करता। एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मेरे को एक डाउट है। तो जब हम बोल रहे हैं कि वी कैन नॉट गिव और टेक डिलीवरी, फॉर एग्जांपल अगर हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन लेते हैं या बेचते हैं, तो बैंक निफ्टी का फ्यूचर डज इट नॉट कम एज अ डिलीवरी इफ वी सेल द ऑप्शन, या हाउ डज दैट वर्क? अरे वो हो सकता है, इवन यू टेक द बैंक 20 आल्सो, और यू कैन टेक द निफ्टी 20 आल्सो, वो सब है। बट उन सब में क्या होना है कि उन सब के करने के बाद में रिटर्न जो है वो 3-4% का नहीं आता है। If you do all those trade, your return will not be more than 1%. अपन जो टारगेट कर रहे हैं वो मेरा बिजनेस प्लान दूसरा है। We'll discuss this thing and then we'll see कि whether we can use that one or not. ठीक है ना, अभी अपन जो बिजनेस वो देखे भैया। सर एक डाउट है आपके इस बिजनेस प्लान में, अगर हम पार OTM CP भी ले ले एज इंश्योरेंस टिकट, तो विल दैट मेक अस वो भी वर्क करेगा। इवन आपका शॉर्ट स्ट्रैंगल कर रहे हो तो शॉर्ट स्ट्रैंगल विल आल्सो वर्क, लेकिन शॉर्ट स्ट्रैंगल का रिटर्न जो है स्ट्रैडल से थोड़ा कम होने वाला है। तो दैट आल्सो विल सी, डोंट वरी, ठीक है। इसमें एडजस्टमेंट कितना करना पड़ता है सर? एडजस्टमेंट में बहुत कम करना पड़ता है, वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, डोंट वरी। तो द पार्ट्स ऑफ द स्ट्रैडल जो जैकपॉट है, इफ इट एक्सपायर एनीवेयर नियर द सेंटर, यू आर इन अ बिग प्रॉफिट, यानी पूरा 100% आपको रेंटल मिलता है अगर वो जैकपॉट मिल जा रहा है तो, और नहीं तो यू आर इन द ब्रेक इवन रेंज। The drawbacks of straddles: gaps. If a big gap happens, you are in a big loss. If you have a naked straddle, then only the gap is a problem. If you have a covered straddle, then ये problem नहीं है। But if you go by the pure straddle किया हुआ है आपने, कोई आपने hedge नहीं किया हुआ है, कोई आपने stop loss नहीं लगा हुआ है, तो then this can be a problem. Spikes, if you sell and if IV spikes, you will be again in a loss. IV is your that IV जो बढ़ जाता है आपका, अगर वो बढ़ गया तो आपका प्रीमियम जो बढ़ जाते हैं, then you can be in loss. Don't know maximum loss. You don't know कि how much maximum loss it can happen. Unless hedge strategy, you don't know how you don't know your maximum losses upfront. क्योंकि इसके अंदर दोनों सबसे आप जो है नेकेड पोजीशन चल रहा है, तो it can be anything. तो ये सब अपन आगे देखेंगे अभी, how to control it. Margins higher than the flies, यानी कि iron fly है या butterfly है और कंडोर है, your margins will be much higher in the straddles. When to do a straddle based on price action. अभी ये क्वेश्चन ये आता है कि हमें straddle करना कब है या करना कैसे है। तो इसका जो एक रूल तो ये होता है कि if you mark a high and low on a chart, if you mark a high and low on a chart, जैसे हमने 15 डे का चार्ट लिया या 30 डे का चार्ट लिया, और 30 डे के अंदर आपने हाई देख लिया और लो देख लिया, अगर वो हाई और लो अगर जैसे आपका 50 रुपीज है, एंड द स्ट्रेडल प्रीमियम इज इक्विवेलेंट टू द रेंज यू थिंक द मार्केट विल ट्रेड ऑन, यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि ये हाई और लो के बीच में मेरा शेयर चलने वाला है 1 महीने का या 2 महीने का, और उतना अगर आपको स्ट्रेडल प्रीमियम मिल जा रहा है, देन इज द आइडियल थिंग, देन विल से कि दैट आई एम डूइंग ऑन द बेसिस ऑफ अ प्राइस एक्शन। सो दिस इज वन ब्रॉड गाइडलाइन कि आपको स्ट्रेडल प्रीमियम कितना होना चाहिए। बट if you are focusing on 4 or 5 script, you will learn, you automatically आपको पता चल जाएगा कि ये भी प्रीमियम मेरा मतलब ये लायक है या नहीं है, should I go or not, you will come to know automatically. So this is the perfect time to do a short straddle, जब ये आपको ऐसा हो जा रहा है। Also when you think the IV is very high,
सडनली जब मार्केट एकदम से वोलेटाइल हो जाता है, आपको बहुत बड़ा न्यूज आने वाला है या कुछ हो जाता है, जैसे बजट के दिन है, when the highs are very high, those are again a very ideal time for the short straddle. Then what do straddles do when in loss? अगर आपने naked straddle किया हुआ है, then what do straddle do when in loss? They can have, these are all the adjustments. You sell another straddle to increase your break even, यानी कि जैसे जिस साइड में जहां मूव हुआ है वहां जाके उन्होंने एक दूसरा straddle बेच दिया. This is one of the way. Can go future long or short to mitigate directional risk. यानी कि अगर शेयर ऊपर चला गया तो आपने वहां फ्यूचर ले लिया, और नीचे चला जा रहा है तो आपने फ्यूचर बेच दिया, तो उससे भी आप अपना जो है यू कैन मिटिगेट योर डायरेक्शनल रिस्क. शिफ्ट टू स्ट्रेडल टू वेयर द मार्केट इज टू अगेन गेट मैक्सिमम थीटा. बेसिकली आइडिया ये है कि स्ट्रेडल को शिफ्ट कर रहे हो, सो अगेन यू आर गेटिंग अ थीटा बेनिफिट. एवरेज बाय सेलिंग अनदर स्ट्रेडल, ये सारे एडजस्टमेंट्स हैं, ये इनका हमको जरूरत नहीं पड़ने वाला है. फिर भी इफ यू वांट टू डू इट, दीज आर द ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल. नाउ व्हाट टू डू व्हेन इन प्रॉफिट. एक तो लॉस हो रहा है तो अपन ये करेंगे, तो प्रॉफिट होगा हम क्या करेंगे. यू डोंट हैव टू रिएक्ट अंटिल योर कंबाइंड एसएल हिट्स फॉर इंट्राडे. कैन कीप लोअरिंग द एसएल टू लोअर योर रिस्क. यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपका उसी ट्रेंड में रेंज कर रहा है जो आपका ब्रेक इवन था, तो आपको कुछ नहीं करना है. यू सच इज टाइट. जब वो उसको हिट करने लगे तब हमारे को जो है कुछ सोचना है कि क्या करें या ना करें. दैट एट दैट टाइम वी विल शिफ्ट अवर, वी कैन डू सम एडजस्टमेंट्स आल्सो. पोजिशनल ट्रेडर्स डोंट नीड टू रिएक्ट टिल देयर लेवल ब्रेक्स. जब तक वो लेवल है तब तो आपको कुछ करने का जरूरत ही नहीं है. Until the market is stuck in a range, it is simple. There are very different methods to adjust straddles. जैसे ऊपर वाले बताए थे, there are so many ways are available. But हमको ऐसा तरीका निकालना है कि हमको कुछ करना ही ना पड़े. That is what I'm going to discuss. Then the straddle with different ratios you can do it. Trader usually add to the winning leg and sometimes play with the ratios when it comes to their. That means कि जो भी winning leg होता है उसको वो और बेचते रहेंगे या उसको मूव करेंगे. These all these are the adjustments, or they will sell the double the quantity. These all are the adjustments only. For example, if you have sold a straddle with a neutral view and your view is turning bullish, then you will sell more ATM puts and vice versa for bearish. So these are all we have. अभी ये वाला जो मैंने आपको पहले जो डायग्राम बताया था कि ये शॉर्ट स्ट्रेडल होता है. You can have a unlimited loss if the share is going down and you can have a unlimited loss if the share is going up. तो इसके अंदर इफ यू बाय द स्टॉक एट डिस्काउंट टू कवर द लॉस, तो स्ट्रेटेजी हमारी ये है कि आई विल बाय द स्टॉक एट अ डिस्काउंट विच विल बी अराउंड 8 to 10% टू कवर द लॉस इन द डाउन साइड. एंड इफ आई हैव द स्टॉक टू सेल एट अ प्रीमियम टू कवर द लॉस, दैट मीन्स कि आई मिटिगेटेड माई रिस्क. नीचे जाएगा तो मैं खरीदने को तैयार हूं, ऊपर जाएगा मैं बेचने को तैयार हूं. तब ये आपको जबरदस्त आपको प्रॉफिट देने वाला है. एंड दैट इज द अवर बिजनेस प्लान. नाउ विल सी हाउ. ओके, ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं. तो इसका जो मेजर जो आपका रिक्वायरमेंट है, आई हैव सर्कुलेटेड दिस स्लाइड इन द ग्रुप आल्सो. तो इसका रिक्वायरमेंट है, यू मस्ट हैव वन लॉट इन हैंड. यू मस्ट हैव वन लॉट इन हैंड. Number 2, willing to sell the lot at a significant higher price over current market price and willing to buy another lot at a significant discount over current market price. अगर ये कंडीशन आप मीट कर रहे हो, then only you will go for the amazing short straddle. क्या 3 कंडीशन. नंबर 1, एक लॉट आपके पास में होना चाहिए. मेनन साहब आप सुन लीजिएगा, श्याम मेनन जी ने पूरा अपना पोर्टफोलियो था उनका 100 शेयर का, उसको उन्होंने रीस्ट्रक्चर करके 4 शेयर में लेके आ गए. Now he has only 4 stocks in portfolio, so he is going in that direction. So you must have a one lot in hand, willing to sell the lot at a significant higher price over current market price and willing to buy another lot at a significant discount over the current market price. ये condition आपका meet होना चाहिए. Okay. Sell ATM CE and ATM P or one step ITM CE or one step ITM P as a short straddle. आप दोनों ले सकते हो. You can have a CE or you can have a one step CE and one ATM. थोड़ा आप 5-10 रुपए का ऊपर नीचे का कर सकते हो. All are short straddle only. So our target is to get total straddle premium of 6 to 8% of current market price. मतलब कि जो मेरा straddle का जो प्रीमियम आ रहा है, अगर मैं UPL का बेच रहा हूँ तो वो जो यूपीएल का मुझे जो प्रीमियम मिल रहा है वो 6 to 8% ऑफ करेंट मार्केट प्राइस होना चाहिए. अगर वो 2-3% का है तो मैं नहीं लूंगा. जो आप लो बीटा स्टॉक का बात करते हैं तो लो स्टॉक के अंदर आपको स्ट्रेडल प्रीमियम 2 या 3% आने वाला है, जैसे HDFC बैंक हो गया या आपके जैसे TCS है. तो इन सब के अंदर जो है आपको 2-3% से ज्यादा रिटर्न नहीं आना. तो ठीक है,
उसमें भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, उसमें रिटर्न कम आएगा लेकिन उसमें वो मजा नहीं है। तो अपने को ऐसे वाले लेने हैं कि अच्छे शेयर भी हों, जैसे भारती हो गया, यूपीएल है, ये सारे जो शेयर्स है दीज आर वेरी गुड शेयर्स। इसमें अपने को 6 से 8% का स्टेडल प्रीमियम मिल जाता है। नाउ सेटअप टू बी इनिशिएट अराउंड 40 to 50 days बिफोर एक्सपायरी नेक्स्ट मंथ, मतलब अगले महीने का जो एक्सपायरी है उसका से 40 से 50 दिन करना है। राइट नाउ इट इज आइडियल टाइम फॉर डूइंग द स्टेडल फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, क्योंकि अराउंड 40 to 50 days अभी हमारा एक्सपायरी का है। तो सेटअप टू बी इनिशिएट अराउंड 40 to 50 days। तो अभी जैसे मैंने एग्जांपल जो मैंने लिया, ये मैंने लिया था जुलाई के अंदर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, और अभी मैं अगस्त से इसको मैं सितंबर में मैंने शिफ्ट कर लिया है। जब मैंने when I did this one in the month of July, I did a short straddle in UPL. Current market price was 740, 750 का मैंने पुट बेचा था 29 रुपीज में, और 750 का मैंने कॉल बेचा था 24 रुपीज में, यानी कि मुझे 53 रुपीज का मुझे स्टेडल का प्रीमियम मिला। करेक्ट, 29 रुपीज पुट से मिला और 24 रुपीज मुझे जुलाई में मिला था। जुलाई में मैंने अगस्त का बेचा था, तो 53 का मुझे प्रीमियम मिला था। मेरा my lower break even price was 750 minus 53, that is 697. So it is a discount of 5.8% on the current market price, and I'm getting 69,000 rupees. मतलब 69,000 का मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। अगर मेरे को वो लोअर ब्रेक इवन पे वो आ गया तो आई एम विलिंग टू बाय। एंड हायर ब्रेक इवन वाज 750 प्लस द सेम 53 रुपीज, दैट इज 803 रुपीज। That means I am getting a premium of 8.5% on current market price. Now why there is a difference of 5.8 and 8.5? Because कॉल जो मैंने बेचा है वो करंट मार्केट प्राइस वाज 740 और मैंने 750 वाले लिए थे, दैट इज द रीजन मेरा हायर ब्रेक इवन वाज, और आई एम गेटिंग अ हायर प्रीमियम। सो 8.5% आई एम गेटिंग अ प्रीमियम इन 1 month if the my share goes above my break even price. Now very high probability of rental income because the break even range is 697 and 803. Now UPL is trading almost in the range of around 680 to 760 for last 2-3 months. So there is very high probability को इसी रेंज में चलने वाला है, इससे ज्यादा ऊपर जाने वाला नहीं है, और जाएगा तो आई एम विलिंग टू गिव द डिलीवरी। आई हैव नो इशू, आई हैव नो लव एंड हेट विद द यूपीएल। मैं आऊंगा, डिलीवरी दे दूंगा, नीचे आएगा डिलीवरी ले लूंगा, कोई इशू नहीं है। आई एम ए बिजनेसमैन। टारगेट टू एग्जिट बिफोर 15 to 20 days फ्रॉम एक्सपायरी विद 40 to 50% ऑफ मैक्स प्रॉफिट। अभी मैंने क्या किया कि सडनली मेरे को जो है सितंबर का जो है मेरे को करीबन 65 रुपीज का मुझे प्रीमियम मिलने लग गया था, तो मैंने उसको जो है ये 53 वाला जो था वो करीबन 30 रुपए में मैंने इस महीने में निकाल दिया इसको। मतलब जो मेरा जुलाई में मैंने किया था अगस्त का, जो मुझे 53 मिला था, वो मैंने 30 रुपए में, 30 या 32 रुपए में मैंने फ्राइडे को स्क्वायर किया मैंने, मेरे तोड़े दोनों को, और मैंने उसको सितंबर में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि सितंबर में आई वाज गेटिंग अ प्रीमियम समथिंग अराउंड 60, मोर देन 60 रुपीज। तो इस तरह से मैंने उसमें से निकल गया और मैंने अपना जो 50% का उसमें से प्रॉफिट निकाल लिया। हाउ टू आइडेंटिफाई हाई स्टेडल? हाई आईवी इसमें रहेगा, हाई वेगा रहेगा, और सिंपली बाय प्राइस मूवमेंट। व्हेन यू डील इन 3 और 4 शेयर्स, यू नो कि कब आपके जो है स्टेडल का प्रीमियम ज्यादा आ रहा है, उस समय अपने को जो है अभी आ गया कि ये स्टेडल का टाइम है, अभी स्टेडल इसमें कर दो इसके अंदर, उसमें अपने को वेट नहीं करना है। नो एडजस्टमेंट टू बी डन इन द लूजिंग साइड। जब भी आप स्टेडल कर रहे हो और जब भी वो शेयर अगर आपका लूजिंग साइड में अगर है, जिस तरह भी वो आपका हिट हो रहा है, उधर आपको एडजस्टमेंट नहीं करना है, और विनिंग वाला जो साइड है उसको आपको रोल ओवर करके आपको रोल अप करना है या रोल डाउन करना है, और वहां से आपको जो है एक्स्ट्रा प्रॉफिट निकालना है। आफ्टर एनी एडजस्टमेंट, इफ स्टॉक रिट्रेसेस बैक टू द मिड पॉइंट ऑफ न्यू ब्रेक इवन, जैसे आपने कोई स्टेडल किया और वो मान लीजिए आपका ब्रेक इवन पे आ गया, और फिर आपने एक नया स्टेडल आपने जो एक विनिंग साइड को मूव किया, तो उससे आपका ब्रेक इवन चेंज होगा। तो वो ब्रेक इवन चेंज होने के बाद में आपने क्या किया कि जो विनिंग साइड को आप मूव करके ले गए, दैट मींस कि आप विनिंग साइड को आपका एक्सपोजर बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपका ये वापस शेयर वहां से घूम के पीछे जाने लगता है, तो उस वाली केस में जैसे ही वो मिड पॉइंट पे आ जाए, आपको एग्जिट कर जाना सारा पोजीशन से, फिर आप वेट मत करो। आप कहने का मतलब है कि जैसे आपने 740 पे आपने स्टेडल किया, 750 का स्टेडल किया, और शेयर आपका आ गया 780 पे। अब 780 पे आने के बाद में आपने जो 750 वाला पुट था उसको आपने आगे खिसकाया, 760 की तरफ खिसकाया, 770 की तरफ खिसकाया, और अगर वो 780 से शेयर वापस पीछे घूमने लगे, तो जो भी ब्रेक इवन का मिड पॉइंट है वहां पे आप पूरा का पूरा उसमें से एग्जिट कर जाओ, क्योंकि वो अगर नीचे चला गया तो आपको जो है पुट साइड में आपको लॉस अच्छा खासा हो सकता है। तो ये थोड़ा अपने को ख्याल रखना है अगर आप एडजस्टमेंट कर रहे हो तो।
नेक्स्ट है नेवर एग्जिट फ्रॉम सिंगल लेग टू बुक प्रॉफिट अनलेस यू आर रोलिंग अप और रोलिंग डाउन। कितनी बार हम लोग क्या करते हैं कि जिस लेग में प्रॉफिट हो रहा है ना उसको तो हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और जो लॉस वाला विनिंग को उसको छोड़ देते हैं। वो कभी भी नहीं करना है हमारे को। अगर आप रोल अप कर रहे हो तो आप एक बेच के एक आगे जा रहे हो वहां तक तो ठीक है, बट अगर कभी भी जो है एक लॉट को विनिंग वाले को कर लिया, लॉस वाले को छोड़ दिया कि ये घूम जाएगा, वो एक ब्लंडर है, वो कभी भी मत नहीं करना हमारे को। तो यू मस्ट एग्जिट रोल ओवर फ्रॉम बोथ पोजिशन व्हेन यू आर गेटिंग 50% ऑफ मैक्सिमम रेंटल। यहाँ मैं रोल ओवर का बात कर रहा हूँ टू नेक्स्ट मंथ। जैसे आप अगस्त से अगर आप सितंबर में जा रहे हैं तो आपको एग्जिट करना है तो दोनों पोजीशन से एग्जिट करना है और दोनों पोजीशन को रोल ओवर करना है, एक एक को मत करो आप, उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। वंस एटीएम सीई और पीई बिकम्स आईटीएम बाय प्रोटेक्शन टू कन्वर्ट इनटू, ये एक अगेन एडजस्टमेंट है। अगर वो आईटीएम हो गया और अगर आप डिलीवरी नहीं लेना चाहते हो, डिलीवरी नहीं देना है, तो देन यू टू कन्वर्ट इनटू अ स्प्रेड। या तो फ्यूचर खरीद लो या बियर कॉल स्प्रेड कर लो, बुट पुट स्प्रेड कर लो, मार्टिंगल करो और गिव एंड टेक डिलीवरी एज प्लान। ये सारे एडजस्टमेंट्स हैं आपके। इट इज डिफिकल्ट टू मेक आयरन फ्लाई इन स्टॉक्स ड्यू टू लिक्विडिटी इशू इन ओटीएम ऑप्शंस। जो स्टॉक्स में आयरन फ्लाई बनाना बड़ा मुश्किल होता है कि भाई हम बीच वाला बेच के मैं बाहर दूर वाला खरीद लूं तो वो उसमें इतना काम करता नहीं है। ब्लैक स्वान इवेंट्स इज इजीली टेकन केयर इन नेक्स्ट मंथ स्ट्रेडल ड्यू टू हाई थीटा। अभी जैसे मान लीजिए यूपीएल अगर मान लो 30 रुपए गिर भी गया मान लो, तो अगले महीने का जो आपने जो स्ट्रेडल किया हुआ है तो उसमें इतना फर्क पड़ने वाला नहीं, तो वो वापस 30-35 रुपए का वो 2-3 दिन में घूम के वापस आ जाता है। तो ये को भी ब्लैक स्वान इवेंट हो गया। अब जैसे फ्राइडे को हुआ था, नहीं थर्सडे को हुआ था, थर्सडे को मार्केट अपना 1000 पॉइंट गिरा था और मेरे को कोई टेंशन नहीं था। मैंने कहा यार मेरे सारे के सारे स्ट्रेडल मेरे जो है सितंबर वाले हैं, मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। और यही अगर इंडिसेज में जिन थर्सडे में काम किया था लोगों को 1-1, 2-2 लाख के लॉसेस लगे थे। लेकिन अगर आप स्ट्रेडल कर रहे हैं स्टॉक्स के अंदर नेक्स्ट मंथ का कर रहे हैं, तो अगर ब्लैक स्वान इवेंट बहुत बड़ा ब्लैक स्वान है तो बात अलग है कि 4 दिन तक लगातार 1,000 जैसे अपना कोरोना में गिरा था तो इशू अलग है, अदरवाइज कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर हो भी गया तो मैं डिलीवरी ले लूंगा या डिलीवरी दे दूंगा। सो विद दिस थिंग स्टॉक जो अप्रैल में इसका ये चार्ट था जिसको मैंने पहले बताया हुआ है कि ये दोनों साइड में लेग है, ये प्रॉफिट है, लॉस है, ये मैं इतना डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ जो मेरा जो भी ट्रेड चल रहा है, मेरा ये अभी सितंबर का ट्रेड चल रहा है, ठीक है। ये मैंने एक दिखाया है, मैं एक्चुअल मेरा जो है वो मैं मेरा गूगल शीट पर दिखाऊंगा। ये मैंने 1 लॉट का मैंने किया हुआ है एंड आई एम डीलिंग राइट नाउ ओनली इन 4 शेयर। नाउ यू मे से कि व्हाई यू टेकन भारती, आईएएक्स, यूपीएल, जील। यू कैन टेक एनी शेयर, एनी अच्छा शेयर, वोलेटाइल थोड़ा सा हो, लिक्विडिटी जिसके अंदर हो, वो अपना शेयर काम करेगा। नॉन लिक्विड वाले में काम नहीं करना है, बाहर वाले में काम नहीं करना है, जो निफ्टी के बाहर वाले उनमें काम नहीं करना है। या वो शेयर अच्छा हो, जैसे आईएक्स है, आई नो कि आईएक्स फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग शेयर है, जबरदस्त ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, तो मैंने आईएक्स लिया हुआ है। अभी देखो इसके अंदर, अभी आप ये चार्ट को थोड़ा अच्छे से एनालाइज करेंगे। भारती के अंदर मेरे को स्ट्रेडल का प्रीमियम मिला हुआ 65 रुपीज, आईएक्स में मिला है 15 रुपए का, यूपीएल में मिला है मुझे 60 रुपीज और जील में मुझे मिला हुआ 30 रुपीज का मेरे को स्ट्रेडल का प्रीमियम मिला हुआ है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, ठीक है। तो मेरा ये स्ट्रेडल प्राइसेस है, ये मेरा लॉट है, ये मेरा एक लॉट का जो इन्वेस्टमेंट है ऑन द करेंट मार्केट प्राइस लिया। मैंने वो नहीं लिया कि मेरी एक्चुअल प्राइस क्या है, आई हैव कैलकुलेटेड ऑन व्हाट इज द करेंट, आज की रेट के ऊपर मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है। तो आज की रेट पे ये 4 स्टॉक के अंदर मेरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है 29 लाख रुपीस का। आई एम टेकिंग इट टू ए बिजनेस प्लान है। तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, 29 लाख रुपीस का मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ हुआ है 4 शेयर के अंदर, 4 लॉट मैंने लिए हुए हैं। इसका मुझे मैक्सिमम रेंटल कितना आ सकता है, 2,86,000। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम आरओआई, 9.66%। यानी कि अगर ये सारे के सारे शेयर अगर एटीएम पे अगर एक्सपायर हो जाए, जो कभी होगा नहीं, आज तक कभी हुआ नहीं है, तो मेरे को मैक्सिमम रेंटल 9.66% आ जाता है। मेरा लोअर ब्रेक इवन इतना है, दैट मीन्स कि आई एम विलिंग टू टेक द डिलीवरी ऑफ द भारती 625। आंख बंद करके मैं भारती 625 कभी भी दे दो मैं ले लूंगा। 625 पिछले 1 साल में भारती गया नहीं है। आईएक्स 147 पिछले 1 साल में गया नहीं है। आई विल टेक द डिलीवरी एनी टाइम, देयर इज नो इशू। यूपीएल ज्यादा 660 670 तक गया हुआ है, अगेन आई एम विलिंग टू गेट द डिलीवरी। एंड जील इज 215 अपर ब्रेक इवन है। मेरा डिस्काउंट मेरा 9.42% का डिस्काउंट आ रहा है, प्रीमियम मेरे को 9.42% का मिल रहा है। नाउ देयर इज अ कैश रिक्वायर्ड टू बाय द स्टॉक विल रिड्यूस माय आरओआई। ये 9.6% का जो आईओआर दिखाया है, दिस इज ओनली ऑन द रेंटल साइड दिखाया है, मैक्स रेंटल के, वो तो इतना मिलने वाला नहीं है। मेरा टारगेट ये है कि मैं 50% पे बाहर निकल जाऊंगा।
ठीक है, यानी कि अगर मेरे को 4.5% का आ गया और अगर मेरा कैश को लेने के बाद में अगर मेरे को 3.5-4% का भी ROI नेट करके निकल रहा है, तो और मुझे क्या चाहिए, मुझे बताइए। 4% या 3% का अगर ROI अगर आपको महीने का निकल रहा है, आप 1.5 साल के अंदर यू विल मेक योर मनी एट डबल, गारंटेड रूप से डबल करेंगे विदाउट एनी टेंशन। ओनली यू आर गोइंग टू टेक 8 to 10 ट्रेड, ज्यादा ट्रेड नहीं लेने वाले, कुछ नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं है, मार्केट को जितना जाए गिर रहा है गिरने दो, जितना ऊपर जाए जाने दो। एंड द बेस्ट पार्ट इज यू आर यूटिलाइजिंग योर 100% कैपिटल इन ऑप्टिमल वे, क्योंकि आपको पता है भाई मेरे पास जो है, मान लीजिए यही है, जैसे सपोज यही ट्रेड आपने लिए एंड यू अज्यूम कि दैट यू हैव अराउंड 50 लाख रुपीज विद यू, दैट मीन्स कि आपने 29 लाख का तो आपने जो है इन्वेस्टमेंट कर लिया, और बाकी का जो 20-21 लाख रुपए, अगर ये चारों आईटीएम हो गए, मान लीजिए कि मैं मार्केट 4000 पॉइंट गिर गया, कुछ बड़ा इवेंट हो गया, ताइवान के ऊपर अटैक हो गया और कुछ प्रॉब्लम हो गया, आई विल टेक द डिलीवरी, क्योंकि मेरे पास 20 लाख रुपए मेरे बैंक में पड़े हुए हैं, जिसके पर भी मेरे को और 5% का ब्याज मुझे और आ रहा है, तो वो भी मेरे ROI में जुड़ने वाला है, ठीक है ना। तो अगर मेरे को 4% का अगर टारगेट ऐसे करके मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मुझे बताइए कि क्या मेरे को जरूरत है कि मैं एवरी डे वो माथाफोड़ी करूं और मैं वो ट्रेड करूं 100 शेयर का या 200 शेयर का, 500 शेयर का, और ये सब करता रहूं। सिंपल 4 शेयर, मेरा इतना बड़ा पोर्टफोलियो और मैं 4 शेयर में काम कर रहा हूं, और ये मेरा है। अभी ये मैंने दिखाया आपको शीट, नाउ आई विल शो यू माय गूगल शीट। एक मिनट, जस्ट आई विल शो यू माय एक्चुअल गूगल शीट। न्यू शेयर, okay, can you see the this Google file? नहीं सर, एक मिनट, रिज्यूम शेयर, हाँ हाँ अभी आ रहा आपको नजर? ओके, नाउ दिस इज माय एक्चुअल पोजीशन ऑफ टुडे, एक्चुअल पोजीशन मेरी टुडे। अभी इसमें देखिए, ये मैंने ट्रेड लिए हुए हैं, भारतीय के सितंबर का 700 का कॉल बेचा हुआ है, 750 का कॉल बेचा हुआ है, 700 का पुट बेचा हुआ है, IEX के मैंने कॉल और पुट बेचा हुआ है, एक मन्नापुरम का जो ट्रेड था वो मैंने शेयर बेचे थे तो उसका मैंने पुट बेचा हुआ है, UPL और झील का। और मेरे पास जो है, ये देखिए स्टॉक वाला जो आइटम है, मेरे पास स्टॉक है 3050 मेरे पास भारतीय पड़ा हुआ है, 4697 IEX है, UPL के 5640 शेयर है, और झील के 9750, ये एक्चुअल मेरे अकाउंट में है, और कोई भी शेयर नहीं मेरे पास में, ओनली द 4 शेयर्स। The valuation of today is 94 lakh for these 4 shares, 94 lakh। तो अगर मैं इसके अंदर, अगर मुझे मान लो जो मैंने कॉल बेचा है, तो उसको, उससे अगर मेरा माल, अगर मान लो OTM पे करके सबको डिलीवरी देना पड़ गया, आई विल गेट 99 लाख। अगर मुझे डिलीवरी लेना पड़ा तो आई हैव टू हैव 79 लाख। ये डिलीवरी जो मैंने AI कॉलम दिखाया है, उसमें जो PE डिलीवरी कैश, यानी 79 लाख रुपीज मेरे पास बैंक में रखा हुआ है, और ये मुझे एक्शन और लेना है। और मेरा जो ROI आ रहा है वो 8.6% का आ रहा है, यानी कि 8.6% का मेरा सितंबर मंथ का जो टारगेट है वो 8.6% का ऑन दिस वैल्यूएशन है। और जैसे ही मेरे को 50% ये मिलेंगे, मैं इसको रोल ओवर करके मैं अक्टूबर में चला जाऊंगा। आई एम वेरी क्लियर। नाउ डू यू सी ए वैल्यू इन दिस बिजनेस प्लान? कि हर चीज प्लान है, कि मेरा बैंक में कितना पैसा रखा हुआ है, मेरे पास कितने शेयर हैं, मैंने क्या क्या स्ट्रेडल किया हुआ है, कुछ मैंने हो सकता है कि एक OTM वाला भी बेचा हो, जैसे UPL के अंदर 900 और 700 और 750 का बेचा है, हो सकता है मैं 800 का भी और बेच दूं मैं, तो वो थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन किए हुए हैं। बट द बिजनेस प्लान इज वेरी वेरी क्लियर कि कितना पैसा मेरे पास है, कितना मैं और लगा सकता हूं, और अगर मुझे देना पड़ा तो मैं डिलीवरी देने को तैयार हूं। अगर मुझे डिलीवरी दे दिया तो मैं पुट बेचना चालू कर दूंगा, और अगर मैंने को डिलीवरी ले लिया मैंने, तो मैं उनकी फिर कॉल बेचना चालू कर दूंगा। पूरा एक्शन प्लान मेरा रेडी है। तो व्हाट आई एम सजेस्टिंग कि हम जो अभी जो एक नाव जो होती है ना समुद्र में, अपने लहरों के हिसाब से चल रही है, उसके बजाय अगर हम प्लान करके अगर ट्रेड करेंगे आप, कि हाँ यार मेरे को ये ट्रेड करना है, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप पैसा बनाएंगे। PV, यू आर देयर? PV, आर यू देयर? आई डोंट नो। नाउ जो राकेश जी है वो ये बता रहे हैं कि ही इज डूइंग दिस शॉर्ट स्ट्रैडल फॉर लास्ट 3 years एंड कंसिस्टेंटली इज मेकिंग मनी। राजेश्वर जी जो कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, वो OTM वाला कर रहे हैं, वो शॉर्ट स्ट्रैडल कर रहे हैं, बट ही इज आल्सो वेरी क्लियर इन हिज थॉट प्रोसेस
कि मेरे को किस तरह से पैसा निकालना है। अगर आप अपना ऐसा बिजनेस प्लान बना के, और इफ यू आर डूइंग ए ट्रेडिंग, तो आपको कोई टेंशन का जरूरत ही नहीं है। मार्केट 3000 पॉइंट गिर जाने दो, 3000 पॉइंट ऊपर जाने दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो अभी इसमें क्या इशू आता है कि ये जो सारे के सारे जो ट्रेड है, इनका मैं रेट एवरीडे आपको डालना पड़ता है। तो ये मेरा जो है एल्गो से हम कर देते हैं, तो एल्गो में मैं एक बार रेट फिट कर देता हूँ, वो फिर एवरीडे मेरा मॉर्निंग में वो रेट ले लेता है, मुझे टेंशन भी नहीं है। ऑटोमेटिकली मेरा जैसे ही 9:15 होता है मेरे ऑर्डर्स में चले जाते हैं इसके अंदर। तो अगर आप चाहो तो एल्गो से कर लो, चाहे आप मैनुअली डालो, बट मैनुअली फिर आपको एवरीडे आपको रेट डालने पड़ेंगे, एग्जिट के और डालने के, वो बात अलग है। अभी इन्होंने एक और प्रोडक्ट बनाया रोल ओवर वाला, सो दैट आई विल एक्सप्लेन मे बी इन द नेक्स्ट वेबिनार, कि ऑटोमेटिकली रोल ओवर हमको जो सितंबर से अक्टूबर में करना है वो कैसे करना है, वो कैन डू। नाउ डू यू हैव ए क्वेश्चन ऑन दिस? एंड नाउ आई वांट टू आस्क वन दिस क्वेश्चन कि ऑल दिस पोजीशन, कैन यू सी व्हिच इज द मोस्ट वनरेबल पोजीशन? ये सारे पोजीशंस में आपको सबसे ज्यादा वनरेबल कौन सी पोजीशन लग रही है आपको इसमें? जो इन द मनी जा रहा हो। नहीं, वो तो एक नहीं, उसमें मेरे को टेंशन नहीं है। इन द मनी जाने में मैं डिलीवरी लेने को तैयार हूँ, मेरा पैसा बढ़ा हुआ है, कोई इशू नहीं है। बट इवन देन विच पोजीशन यू फाइंड इज कि ये आपने पोजीशन क्यों लिया और इतना ज्यादा क्यों लिया? कैन यू फाइंड दैट पोजीशन? झील में तो प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रहा है कि 230 वाला मेरा था, तो 230 वाला तो ऑलरेडी जो है अभी वो 4 रुपए प्रीमियम मतलब ऑलरेडी मतलब वो प्रीमियम आपका अभी जो मैंने 15 रुपए पे बेचा हुआ है, और अभी करंट प्रीमियम 10 रुपए 95 पैसा चल रहा है, एंड ऑलरेडी जी इज ट्रेडिंग एट समवेयर अराउंड 240। तो जी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी आई डोंट फाइंड IEX वाला आपका क्वांटिटी बहुत हाई है। या IEX में जो है ये मैंने फ्राइडे को लिया, मैंने पोजीशन, मैंने ये रोल ओवर करके अगस्त से मैंने जो है उस दिन शिफ्ट किया, और उस दिन मैंने 2 लॉट्स ज्यादा बेच दिए, एंड आई हैव शॉर्टेड 4 लॉट ऑफ पुट इन 12 रुपीज, और वो भी 12 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। वो 12 रुपीज 75 पैसा वो आया था, बट ये ट्रेडिंग अराउंड 11 to 12 रुपीज है। तो इसके अंदर मेरे को मंडे को मेरे को कॉल बेचने जरूरी है, क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी भी है, 4697 का क्वांटिटी रखा हुआ है। तो मैंने उस दिन कॉल बेच के और सेम डे एक्सपायर करके उसमें प्रॉफिट ले लिया था 6000 का। बट अगेन मंडे आई हैव टू सेल द थिंग, एंड देन आई हैव टू रिड्यूस माय फ्रॉम मे बी 4 पुट टू 3 पॉट। तो ये जब आप पोजीशन आप रखोगे ना, ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, देन यू विल एनालाइज कि यार ये क्या किया हुआ है, मुझे क्या एक्शन लेना है। अब जैसे मैंने लास्ट में एक्शन प्लान लिखा हुआ है कि रोल अप टू 750 रुपीज, कैन सेल 1 more कॉल, कैन सेल 1 more पुट। यहाँ पे मैंने लिखा है मस्ट सेल, यानी कि मुझे IEX का मुझे कॉल बेचना ही बेचना है, क्योंकि मैंने एक्सपायर कर लिया था। मस्ट एग्जिट 2 पुट, 4 पुट्स में से 2 पुट को बाहर आ जाओ, जैसे मौका मिलता है बाहर निकल जाना प्रॉफिट लेके। सो ऑल दीज एक्शन प्लान यू कैन मेक इट, provided you have a less number of stock and then you are behaving like a wholesaler, not like a retailer। कि मैं IEX भी ले लूं, मैं मन्नापुरम भी ले लूं, मैं रिलायंस भी ले लूं, रिलायंस का न्यूज आ गया रिलायंस भी ले लिया, TCS भी ले लिया। नहीं, मेरे को भी टेम्पटेशन आ जाता है यार कि रिलायंस का न्यूज अच्छा आ रहा है, चलो ले लो। बट देन आई एम मूविंग फ्रॉम ए होलसेलर मेंटेलिटी टू ए रिटेल मेंटेलिटी। आप जैसे अगर कभी होलसेल मार्केट में जाएं कभी, तो आप देखोगे वो प्याज वाला सिर्फ प्याज में धंधा कर रहा है, वो फिर वो आलू में धंधा नहीं करेगा। ही इज डूइंग ओनली इन ओनियन, करेक्ट? वो और इधर देखेगा भी नहीं वो, बिकॉज ही इज अ मास्टरी इन द ओनियन। उसको पता है कि नासिक में अभी ओनियन 1 रुपए का मिलने वाला है, बाजार में 30 रुपए में वो बेचेगा, वो 1 रुपए में वो ह्यूज क्वांटिटी ले लेगा, बिकॉज ही इज अ मास्टरी इन दैट ट्रेड। हमारा क्या है रिटेलर का, हम 1000 चीजों में घुस जाते हैं इसके अंदर। एंड ऑफ द नीचे अगर देखोगे तो वो आपका जीरो ही नजर आता है, मतलब जो सम गेम है, किसमें प्रॉफिट किसमें लॉस, नीचे का बॉटम लाइन दिखेंगे तो जीरो वैल्यू आ रहा है टोटल। अगर आप बिजनेस प्लान बनाओगे यू विल मेक अ ह्यूज मनी, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। सो एनी क्वेश्चन ऑन दिस, एनी डाउट? सर इसमें आप मन्नापुरम स्क्वायर अप क्यों नहीं किए? जो पुट सेल किया है 20 पैसे में है, मार्जिन मनी ब्लॉक है आपका। नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि वो नहीं, उसका अभी रेट चल रहा है 2 रुपए, और मैंने बेचा 5 रुपए में, और मैंने बाई का टारगेट डाला हुआ 25 पैसे। 25 पैसे मेरा टारगेट लगा हुआ है, जो मेरा एल्गो में रेट डाल रखा है। जैसे ही 25 पैसे आएगा मैं स्क्वायर करूंगा। अगस्त का तो मैं 20 पैसे में कल ही स्क्वायर किया हूँ। नहीं तो नहीं, ये मैंने सितंबर का बेचा था मैंने अगस्त का जब हाँ, ये सितंबर का मेरा बेचा हुआ। ये सारे सितंबर के ट्रेड है ना, ये सारे सितंबर के ट्रेड है मेरे, ये देखिए सब सितंबर के ट्रेड है। 5 रुपए में बेचा है, 5 में मुझे पूरा मिलने वाला है, पूरा 30,000 रुपए मिलने वाला है। हाँ वो मिल रहा है, वो तो क्या था जब आप बताए थे ना उसमें मैं डाला था कि आपको 100 रुपए में कभी नहीं मिलेगा।
हाँ, वो कभी भी आया तो वो ठीक है, तो पूरा 5 में 30,000 रुपये मिलने वाला है, मैंने कहा चलने दो, जिस दिन 25 पैसा आएगा मैं इसको एक्सपायर करके और अक्टूबर में घुस जाऊंगा मैं, या अक्टूबर में अगर मेरे को 4-5 रुपए का मिल रहा है तो अक्टूबर में शिफ्ट कर जाऊंगा। अभी वेटिंग, अभी सितंबर के ट्रेड चल रहे हैं, तो नॉट हरी, नो हरी, ऐसा करके। तो आप, मेरा कहने का मतलब है कि एक एक ट्रेड में अगर आप 40,000 50,000 रुपए ऐसा निकाल रहे हो तो क्या जरूरत है हमको वो डे ट्रेडिंग करने का, या वो इंडाइसिस में जो है हम जो एक्सपायरी डे वाला ले रहे हैं 1,000 रुपए 2,000 रुपए के लिए, मेरे को नहीं जमता है। ठीक है, मैंने वो वेबिनार में बताया था सारा स्ट्रेटेजी। ठीक है सर, हाँ ठीक है सर, आपका एनुअल आरओआई क्या टारगेट है इससे? अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा जो मंथली का जो टारगेट है वो है 3% का। 3% मेरे को निकलना चाहिए, और मैंने पिछले 2-3 महीने में ही मैंने पूरा चेंज किया। मैंने अभी मैंने 1 साल से नहीं किया था ये, मैं 2-3 महीने से इसमें आया हूँ। नाउ आई एम फाइंडिंग दिस इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव। एक तो मेरा टेंशन कम हो गया। अच्छा, आपका नंबर ऑफ ट्रेड्स मेरे कम। से आपका 3% से 4% का 3 महीने में 3% का रिटर्न आ रहा है। 3% 3 to 4% का रिटर्न आराम से इसमें आ जाता है, इसके अंदर आराम से, क्योंकि ज्यादा आ जाता है। लास्ट 1 year में ऐसा व्हाई डिड यू टेक अ पॉज, कुछ लर्निंग रिफ्लेक्शन की या ऐसा क्या हुआ, व्हाट चेंज्ड, बिकॉज़ आई नो यू आर फॉलोइंग दिस फॉर सम टाइम नाउ, तो व्हाट इंप्रूवमेंट्स या क्या रिफ्लेक्शन थे जो आपने अब इस बार लेके आए हो इन योर स्ट्रैटेजी? नहीं, पहले मैं ओटीएम में कर रहा था। पहले मैं ओटीएम में करता था, आई वाज डूइंग द शॉर्ट स्ट्रैंगल्स। ओके, तो शॉर्ट स्ट्रैंगल में मेरा रिटर्न जो था वो करीबन 1.5% के आसपास का आ रहा था। लेकिन जब हमारे डागा जी ने ये अपने जो सोम प्रकाश जी ने जब उन्होंने जो वेबिनार लिया था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि स्ट्रेडल का क्या एडवांटेज है। 1 मिनट इनको थोड़ा 1 बजे तक म्यूट कर रहा हूं सबको। तो उन्होंने एडवांटेजेस बताए थे कि शॉर्ट स्ट्रेडल का, मुझे पहले शॉर्ट स्ट्रेडल से डर लगता था, लेट मी टेल यू, ठीक है ना। मैं पहले शॉर्ट स्ट्रैंगल में करता था एंड आई हैड अ मास्टरी इन द शॉर्ट स्ट्रैंगल, और शॉर्ट स्ट्रैंगल में रिटर्न जो है वो 1.5% 2% से ज्यादा नहीं आ रहा था। जब उन्होंने वो एक्सप्लेन किया मुझे कॉन्सेप्ट कि शॉर्ट स्ट्रैंगल का ये एडवांटेज है और इसको एडजस्टमेंट करना इतना आसान है, देन आई स्विच्ड ओवर फ्रॉम द स्ट्रैंगल टू स्ट्रेडल। देन आई स्टार्टेड सीइंग कि यार ये 50% का तो मुझे कभी भी एडवांटेज मिल जा रहा है, और जबकि वो शॉर्ट स्ट्रैंगल के अंदर आपको 50% बेनिफिट के लिए बहुत लंबा वेट करना पड़ता था, और उस समय वो शेयर आपके ऊपर नीचे काफी हो जा रहे थे। जबकि स्ट्रेडल वाले जो प्रीमियम है ना, एक दफा ज्यादा प्रीमियम होता है तो थीटा का बेनिफिट जबरदस्त मिलता है। दैट इज द रीजन आई फाइंड द शॉर्ट स्ट्रेडल इज मच बेटर, बिकॉज आई एम विलिंग टू टेक द डिलीवरी, आई एम विलिंग टू गिव द डिलीवरी। तो मुझे वो टेंशन ही नहीं है जो बाकी लोगों को टेंशन होता है कि स्टॉप लॉस लगाना है या उनको डिलीवरी कैसे ले लेंगे। मेरे अपना पूरा कैपिटल देखा हुआ है, मेरे पास इतना कैपिटल है, इतना मैं और लगा सकता हूँ, एंड आई एम डूइंग, एंड आई फर्दर इंक्रीज इट, और आई मे रिड्यूस फ्रॉम 4 to 3 शेयर नाउ आल्सो। 4 से मैं 3 में आ जाऊंगा, हो सकता है मैं, और इसका थोड़ा अमाउंट और बढ़ा दूंगा मैं, क्योंकि यू हैव टू गो फॉर अ किल। मार्केट में अभी देखो सबसे बड़ा इशू क्या है कि ऑपरेटर्स है, मीडिया है, टीवी है, सब लोग हमारे से कमाना चाहते हैं। एवरीबडी वांट टू मेक द मनी फ्रॉम अस। रिटेलर पैसा देता है, ये बोला जाता है कि सारे जो लोग हैं, अपन जो लोग हैं ना, कमाते हैं ऑफिस के अंदर है और मार्केट को देके जाते हैं, ये बम्बई समुद्र है, पूरे इंडिया में समुद्र में पानी जाता है। सर ये बताएंगे थोड़ा, ये एल्गो आपने कैसे यूज किया, ये बाय सेल जो डेली का लगाया आपने ऑफसेट, और ये एल्गो ट्रेडर का है। अगर आप एल्गो ट्रेडर ग्रुप के अंदर हैं तो नहीं, मैं हूं सर, मैं हूं, मेरे पास सब्सक्रिप्शन भी है सर, दैट्स व्हाट, ये कैसे किया हुआ है सर, ये बताएंगे। ये तो फिर आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा ना कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल अपन जैसे पहला वाला लाइन देखते हैं भारती का, ठीक है, भारती का देखते हैं। अब भारती का जो अभी आपका रेट चल रहा है वो चल रहा है 34 रुपीज 55 पैसा, जो मैंने जेड में डाला हुआ है, करेक्ट, 34 रुपीज 55 पैसा इसका करेंट मार्केट प्राइस है स्ट्रेडल का फॉर द कॉल फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अभी मैंने इसका रेट डाला है 35 + 10 45 रुपीज का, यानी कि अगर 45 रुपीज में आ जाएगा तो मैं बेचने को तैयार हूं, और अगर ये 18 - 10 8 रुपए में आएगा तो मैं खरीदने को तैयार हूं। और मेरे 2 ऑलरेडी शॉर्ट हैं जिसकी मेरी एवरेज प्राइस 30 रुपए है, तो 30 से भी थोड़ा ज्यादा चल रहा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरे को कॉल में पुट में फायदा हो रहा है। पुट देखो 34 रुपए का 28 रुपए हो गया, 34 में बेचा था, थर्ड लाइन वाला जो पुट बेचा था वो अभी 28 रुपये चल रहा है, और यहाँ पे पहले वाले में थोड़ा सा उसमें लॉस है, ठीक है, नो इशू। तो अपन ये मैं 45 में बेचने को तैयार हूँ। ये आपको थोड़ा कैलकुलेट करके रखना है कि मेरे को किस रेट में बेचना है, किस रेट में खरीदना है।
और जो भी रेट आएगा उससे और 2-3 रुपए और ज्यादा कर लो, 2-3 रुपए और कम डाल के उस डाल को रेट को डाल दो। सर एक क्लास चाहिए कि एल्गो में ऑप्शन कैसे करते हैं, बिकॉज एल्गो में अभी तक ऑप्शन नहीं कर पाया मैं, बाकी फ्यूचर्स किया नॉर्मल। तो ये तो ऑप्शन का मैं बता रहा हूँ ना, ये ऑप्शन ही तो बताया मैंने क्या होता आपको। है ना, वो बाय बैक करता जाएगा जैसे जैसे वो प्रीमियम डाउन होगा और सेल करता जाएगा। नहीं, तो वो नहीं, मतलब नहीं, लॉजिक देखो मीट आउट नहीं होता बताओ, उसमें। एल्गो में बेस्ट है बेचने के लिए, बेचने के लिए बेस्ट है। खरीदने के लिए आप अपने को एग्जिट करना तभी निकलना है, ठीक है ना। तो खरीदने की रेट बहुत कम करके डाल दो आप, मैनुअली और करना। बेचने की रेट Okay. जो है, जो भी करंट मार्केट प्राइस है उससे थोड़ा 10% 15% रेट करके छोड़ दो आप। और अपने को एक ही ट्रेड करना है, अपने को वो एवरी डे ट्रेडिंग नहीं करना है एल्गो के थ्रू, ऑप्शंस के अंदर वो करना है तो फिर अपने को इंडाइसिस में करना है, ठीक है ना। तो आपका कहने का मतलब है कि ट्रेड एंटर कर लो, एज इन आप पोजीशन बना लो थ्रू दी एल्गो, हाँ, या एग्जिट करो आप मॉनिटर करके मैनेज। हाँ, वो करके रेट डाल दो, जिस दिन भी रेट आएगा निकल जाओ। जैसे मन्नापुरम का देख रहे हैं 25 पैसे का रेट डाला हुआ है, अब 25 पैसे का रेट वो 15-20 दिन में आएगा ही आएगा, जिस दिन आएगा उस दिन एग्जिट कर जाएंगे, दैट्स ऑल, ठीक है ना। अब मैं एवरीडे तो मैं मन्नापुरम का रेट नहीं डाल सकता हूँ, मैं एवरीडे मॉर्निंग में नॉट पॉसिबल। तो ये एल्गो में डाल दिया तो एल्गो में ऑटोमेटिकली 9:15 पे सारे ऑर्डर बाई सिल के चले जाते हैं वो, तो वो एडवांटेज है एल्गो का। मैनुअली आप डाल सकते हो, बास्केट ऑर्डर में करके कर सकते हो, बट आई फाइंड दैट इज मच बेटर, तो ऐसा करके करते हैं। सो दिस वाज जीटीटी ऑर्डर में डाल सकते हैं ना, गुड टू ट्रेड, जो लोग एल्गो में नहीं है गुड टू ट्रेड में डाल के छोड़ सकते हैं। हाँ, वो जीटीटी भी करके डाल सकते हो, जीटीटी भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, जीटीटी में डाल सकते हो। लेकिन इसमें क्या है कि एट ए टाइम हमारा हो जाता है, मॉनिटरिंग सारी हो जाती है गूगल शीट से ना, हम गूगल शीट से मॉनिटर कर लेते हैं, वो वाला है, ठीक है ना। चलिए अभी नाउ विल गो टू द नेक्स्ट, नाउ आई विल स्टॉप दिस वन, न्यू शेयर। ओके, तो ये अपना जैसे बिजनेस प्लान मैंने बताया आपको। नाउ अभी अपन एक्चुअल लेंगे, प्रैक्टिकल, ओके। सो यू हैव टू गिव मी द 4 स्क्रिप्ट A B C and D, उसके हम एक्चुअल जो है डालेंगे, एंड देन वील कैलकुलेट कि हमारा ROI कितना आ रहा है। तो ये जो एक्सपर्ट हैं जैसे राजेश्वर जी है, उनको शायद जरूरत ना हो, लेकिन जो स्टेडल के बारे में जितना एक्सपीरियंस नहीं है या जिनको उतना, उनके लिए थोड़ा एक अच्छा एक्सरसाइज हो जाएगा। जैसे मेनन साहब है या भाटिया जी हैं, those who want to learn कि ये स्टेडल कैसे करना है, कैसे ROI निकालना है, so it will be good exercise for them. So this is the actual exercise, we'll do it. तो मेरा सजेशन ये था कि आप 4 स्टॉक का नाम बताओ एंड ओपन एन ऑप्शन चेन, वहां से आप मुझे प्राइस बताना है, एंड देन विल मेक द एक्चुअल शीट, ओके। सो इसको मैं कर रहा हूं बंद, एंड आई एम ओपनिंग एक्सेल फाइल। एक मिनट, सर मैं सबको म्यूट करे जा रहा हूँ बिकॉज बैकग्राउंड नॉइज है। किसी को भी बात करना है तो अपने आप को अनम्यूट कर ले प्लीज। या शेयर स्क्रीन, शेयर स्क्रीन, ओके। नाउ ये 4 वाले जो मेरे वाले शेयर थे उनको छोड़ दीजिए। नाउ यू हैव टू टेल मी, यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन? एक्सेल फाइल नजर आ रही है आपको? ओके, नाउ यू हैव टू टेल मी द 2 or 3 स्क्रिप्ट्स, उसकी मुझे प्राइसेस बतानी है, रिपीट कैलकुलेट द ROI, सो दैट ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि बिजनेस प्लान हमको कैसे बनाना है, ओके। सो टेल मी द 3 नेम्स ऑफ द शेयर, उनका हम एक्चुअली बनाएंगे, ओके। REC और बोलिए दूसरा, REC और NMDC सर, PIL, NMDC सर, NMDC, और तीसरा VIL, PIL है, PIL, ओके। अभी मुझे REC का आप बताइए करंट मार्केट प्राइस कितना है? BL भी लेंगे, ओके। करंट इज 133.5। एक सेकंड, जस्ट मुझे ये लेने दो सर। एक ITC का अरे एक का करेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो अपने को हो जाएगा, डोंट वरी। तो ये अपने ने BEL ना, ओके। हाँ, अभी आप मुझे REC का CMP बताइए कितना है? 133.5, 133.5 रुपए 50 पैसे। अच्छा, अभी मुझे बताइए सितंबर का 130 या 135 का, कोई सा भी ले लो आप, यू कैन टेक 130 और 135, उसका सितंबर का कॉल और पुट का टोटल प्रीमियम कितना है? या मुझे कॉल और पुट का दोनों बताइए, मैं टोटल कर दूंगा। ये 135 नहीं दे रहा सर, 140 का कॉल का प्रीमियम है, 2 रुपए 80 पैसे। नहीं 140 नहीं, 130 का लो आप, 130 का। 130 है ही नहीं, दिखा नहीं रहा सर सितंबर का।
अच्छा ठीक है 140 का क्योंकि ये लीजिए शायद एक्स 140, हाँ बोनस हो जाएगा ना सर। हाँ ठीक है 140 का बताइए कितना है। दो कॉल 2 रुपीज। कॉल का 2 रुपए 80 पैसे, पुट का 0 हाँ दिखा रहा है सर। नहीं तो पुट का होना चाहिए ना, पुट का भी कुछ तो होना चाहिए, इसका ये इलीजिबल लिक्विड नहीं है। 2 रुपए 80 नहीं तो चलो है सब। चलो मैं 2 रुपए ले लेते हैं, 2 रुपए ले लेते हैं। नहीं 140 का है ना, हाँ 140 2 रुपए का 140 का नहीं ज्यादा रहेगा आपका, 140 का 3 रुपए मान लीजिए, ये 5 रुपए 80 पैसे। हाँ तो आपने ये लिया 140, ओके। या और इसका लॉट कितना है, इसका लॉट साइज कितना है? 6000 का 6000। 6000 का, 6000 का, ओके। तो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 8 लाख और 1000 का। अगर आप एक लॉट आज खरीदते हैं today, if you buy RAC at current market price, your lot size, your investment is 8 lakh and 1,000. Your maximum rental income is 34,800. Your maximum ROI is coming to 4.34%. Actually ये आपका जो स्टडल प्रीमियम है ना, ये बहुत कम आ रहा है। ये आपने 140 का लिया है ना, तो 140 ऑलमोस्ट OTM स्ट्राइक हो गया है। That is the reason your maximum ROI जो 4.34 आ रहा है। Otherwise it should be somewhere around 7 to 8% आना चाहिए। चलिए सर आप जो NMDC का 140 बोल रहे हैं ना, ये इसलिए है कि 140 एक्स बोनस हो जाएगा अभी 17 अगस्त को। ये जो सितंबर का प्राइस है एक्स आईटीसी का लीजिए उसको का सर। हाँ नहीं हाँ और बोलिए ITC का लें। यस सर। ITC will very good, ITC will very good, या ITC का करंट मार्केट प्राइस कितना है? राज 310 के करीब है आईटीसी का। 310। अच्छा इसका स्टडल का प्रीमियम बताइए। 310 का 311.85 311.85, ओके। अभी इसका स्टडल का प्रीमियम बताइए 310 का। कॉल है 12 रुपया, 12 रुपए, ओके। और पुट है 25 25, हाँ 930, हाँ 930। अच्छा 950 है, 950, ओके। तो 21 रुपीज हुआ, ठीक है। और स्टडल का आपने कितना लिया? 310 का लिया ना, ओके। लॉट साइज कितना ITC का लॉट साइज कितना? 3000 है ना मेनन साहब? ITC लॉट साइज क्या है? 3200, ओके। तो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ एक लॉट में 9.97 लाख का, वन लॉट। योर रेंटल इनकम इज 68,800 एंड योर मैक्सिमम ROI 6.89% है। योर लोअर ब्रेक इवन इज 290 रुपीज, अपर ब्रेक इवन इज 330 रुपीज, यानी कि 290 के नीचे जाएगा तो यू हैव टू टेक ए डिलीवरी, और 333 के ऊपर जाएगा तो यू हैव टू गिव ए डिलीवरी। तो अगर आपको डिलीवरी लेना पड़ा तो आपको 6.89% का डिस्काउंट मिल रहा है, और अगर आप सेल कर रहे हो तो 6.89% का आपको प्रीमियम मिल रहा है। अदरवाइज यू आर गेटिंग योर रेंटल इनकम। तो जैसे ही ये 68,000 का आपको जो रेंटल आ रहा है, जैसे ही आपको 30,000 से लेके 35,000 का रेंटल आपको मिलने लगे, आप इसको रोल ओवर करके आप जो है अक्टूबर में चले जाओगे। दैट इज योर टारगेट। मेनन साहब समझ में आया आपको? कुछ मेनन साहब क्या है कि अभी अगर आप जैसे मंडे को स्टेडल करते हो आप ये, तो यू आर गेटिंग अ रेंटल इनकम ऑफ 68,800, यानी कि अगर आपका ITC 310 पे एक्सपायर होता है, 310 पे अगर आपको सितंबर में एक्सपायर होता है, तो यू विल गेट अ फुल रेंटल 60,000। बट ये कभी होगा नहीं, या तो आपका पुट ITM हो जाएगा या आपका कॉल ITM हो जाएगा। तो अभी अपने को रेंटल को ट्रैक करना है। जैसे ही आपका रेंटल 30-35,000 का मिलने लगे आपको, कि हाँ अभी 30-35,000 का जो है आपको एक्चुअल में रेंटल मिल रहा है, या एक्चुअल में आपको प्रॉफिट मिल रहा है स्क्वायर करने के बाद में, यानी कि हमने कॉल भी स्क्वायर कर दिया, पुट भी स्क्वायर कर दिया, 34,000 या 30,000-35,000 का रेंटल मिल रहा है, अपने को एग्जिट करके अक्टूबर में शिफ्ट हो जाना है। यानी कि आपका 3% का उस महीने का आपका ROI आपका आ गया। जो आपने 9,97,000 लगाया है, उसके पर आपको 3-3.5% का आपको ROI आपका मिल गया। आपका उस महीने का टारगेट पूरा हो गया। देन विल डू फॉर द अक्टूबर, यानी कि हाँ बोलिए सर। एक सेकंड, अभी आप बता रहे हो 310 पे तो पॉसिबल नहीं है एक्सपायरी होने का, ठीक है? हाँ बराबर है, या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। नहीं हाँ ये फॉर एग्जांपल अभी हम सोचते हैं ITC 300 चला गया, ठीक है? हाँ। आपको 30,000 रुपए के प्रॉफिट के लिए आपको पूरा एक्सपायरी के लास्ट वीक तक वेट करना पड़ेगा, तभी जाके आपको 30,000 रुपए प्रॉफिट मिलेगा। नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। नॉट रियली। नहीं कैसे नहीं होगा सर? फॉर एग्जांपल अभी स्टैडल इतना शिफ्ट हो गया, 10 रुपए शिफ्ट हो गया। सर आपके पास एक लॉट भी होना चाहिए ना, सर ने बोला एक लॉट होना चाहिए, नहीं तो फिर भाई आपके पास में लॉट है 300 रुपए आ गया, अगर मान लो 310 से 300 रुपए आ गया,
ठीक है, आपका ब्रेक इवन प्राइस कितना 290 का है, तो 290 तक तो अपने को टेंशन ही नहीं है, 290 तक आपको कोई टेंशन ही नहीं है, 290 तक तो आपको लॉस होने का कोई चांस ही नहीं है, तो आप वेट कर रहे हो, कोई बात नहीं है, ठीक है 300 आगे आ जाने दो, मेरे पास 45 डेज पड़ा हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आईटीसी 290 के बाद में 290 तक आ जाएगा तो मैं डिलीवरी ले लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों कि आपका जो करंट लॉट 311 का है और अभी आपको 20 रुपए डिस्काउंट में मिल रहा है, तो आईटीसी लेके मैं कॉल बेचना चालू कर दूंगा मैं। आईटीसी इज ए वेरी स्टेबल शेयर, आईटीसी ऐसा नहीं है कि 300 का शेयर 200 आ जाएगा या 300 का 400 चला जाएगा, ये 10-15 रुपए ऊपर जाएगा, 10-15 रुपए नीचे आएगा, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा नहीं मूव होने वाला है। आप राजेश्वर जी से पूछ लीजिए, राजेश्वर जी पिछले 5 साल से आईटीसी में काम कर रहे हैं, ये धीरे 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 करके ये आपका 10 रुपए ऊपर जा रहा है, 240-230 रुपए ट्रेड करता था, आज वो थोड़ा थोड़ा होता 300 आ गया, पर ऐसा नहीं है कि एक महीने के अंदर ही 50 रुपए बढ़ गया हो। तो आईटीसी तो बहुत ही, मतलब ऐसा लोग बोलते हैं कि पूरा सारे अपने इंडियन शेयर मार्केट के अंदर आईटीसी इज वन ऑफ द बेस्ट शेयर फॉर डूइंग द स्ट्रडल बिजनेस और स्ट्रैंगल बिजनेस, मतलब इससे बढ़िया तो कोई शेयर ही नहीं। बेस्ट। हाँ, आप बोलेंगे मतलब राजेश जी, आपको आप आईटीसी 60% एनुअल रिटर्न सकता है मिनिमम। हाँ सर, बोल लीजिए। इसमें आईटीसी में मैं कई बार किया हूँ, मतलब पिछले तो कई सालों से कर रहा हूँ। आईटीसी अभी तक मुझे एक साल में 50 लाख रुपए दिया है, दूसरों ने खाया होगा, बट इतना रिटर्न कोई शेयर नहीं देता। मतलब अगर मैं आईटीसी को लेके पूरा डिलीवरी लेके सो जाऊं तो मेरा फ्री का होगा वो शेयर, कम से कम 10 लॉट ले सकता हूँ। आईटीसी में बेस्ट है, जो आप बताए ना, मैं हर समय वही बोलता हूँ कि मैं, खैर ये आप जो कर रहे हैं 300 का, जब अगर आईटीसी 320 चला गया मान लीजिए, तो मैं जो 300 वाला स्ट्रेडल है जो पुट बेचा है उसको ऊपर ले आ लेता हूँ, उसको स्क्वायर करके 310 के स्ट्रेडल में 320 में, हाँ मैं एंटी मनी में चला जाता हूँ। बराबर, हाँ वो एडजस्टमेंट हर महीने करता हूँ, क्योंकि आईटीसी क्या है कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ये कि उस शेयर के लिए कर सकते हैं स्ट्रेडल जो कम मूव होता है, बट आईटीसी अगर आप देखेंगे पिछले 2 महीने में करीब 30% बढ़ गया है। राइट। तो उस केस में आपको पुट वाला जो आपने सेल किए हैं उसको ऊपर ले जाते जाना चाहिए। यू आर राइट। वो जो विनिंग लेग है, विनिंग लेग को आपके आगे मूव करना है, हाँ दैट इज एडजस्टमेंट, आगे मूव करना है। अगर मैं बता रहा हूँ एडजस्टमेंट नहीं भी किया किसी ने, वो आप सीख जाओगे, एडजस्टमेंट करना बहुत आसान है, एडजस्टमेंट करना बहुत आसान है इसके अंदर। जो भी आपका विनिंग लेग है, अगर जैसे आपका जैसे बताया इन्होंने 310 पे आपने स्ट्रगल किया और रेट आपका 320 चला गया, तो जो आपका जो पुट वाला है उस पुट वाले को आप आगे मूव कर दोगे आप, क्योंकि आपका रिस्क उसका जो सेटलमेंट कम होता जा रहा है, उसको मूव करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपका उसमें प्रॉफिट 4-5 रुपए का आपको और मिल जाएगा, तो 5-5 रुपए यानी कि 15,000 का प्रॉफिट आप निकालते जाओगे उसमें से, तो आपका आरओआई इवन 6.89 से ज्यादा चला जाएगा। राइट, हाँ बोलिए। जो आपने पुट को स्क्वायर अप किए हैं ना, उसमें ऑलरेडी प्रीमियम तो खा चुके हैं आप, वो प्रीमियम को स्टेक पे लगा सकते हैं। जैसे आईटीसी का मान लीजिए 8 रुपए में आपने सेल किए और 3 रुपए में वापस मिल रहा है, तो 5 रुपए प्रीमियम आपने अर्न कर लिए, जो अर्न पैसा है उसको स्टेक पे लगा दीजिए ऊपर जाके, कि चलो जाएगा और क्या होगा। स्टेक में लगा दीजिए मतलब कि आप उसका मतलब प्रॉफिट जो अर्न किए ना उसको यूज करो अगले ऊपर का पुट बेच के, और मान लीजिए गिरता है तो ठीक है ना, आपने नहीं कमाया 1 महीने, उसमें क्या है। हाँ वो सारा एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप, फर्दर मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। यू आर राइट। सर गुड मॉर्निंग घोष हियर, मेरा एक क्वेश्चन था, आपने जो आरओआई निकाला है वो इन्वेस्टमेंट पे निकाला है, एंड इन्वेस्टमेंट इज एग्रीड। हाँ वो आपने इन्वेस्टमेंट निकाला है कि 9.5 लाख आपके पास कैश में भी होना चाहिए। यू आर राइट 100% राइट है। जो आपने कैश आपके बैंक में पड़ा हुआ है, अभी जैसे अपन बिजनेस प्लान देख रहे हैं, अभी आपने मान लीजिए 4 शेयर आपके पास में, आईटीसी, एनएमडीसी, बीईएल और पीआईएल, अज्यूम कर रहा हूँ चारों आपके पास शेयर है, ठीक है। अब 4 शेयर का अगर हम 9 लाख रुपए 8 लाख रुपए का अगर हमको कैश चाहिए, यानी कि वी नीड समथिंग अराउंड 30 लाख। बट ऐसा मतलब मैं बताता हूँ 100 में से एक बार होगा जब चारों के चारों शेयर आपका आईटीएम हो जाए। चारों शेयर आपका आईटीएम नहीं होने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा होंगे तो 1 या 2 आईटीएम होने वाला है। तो इवन तभी होगा सर, अगर कोई ब्लैक स्वान इवेंट हुआ तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। नॉर्मल केस में इनवेरिएबली नहीं होता है वो, एक आधा शेयर। इवन ब्लैक स्वान इवेंट में भी 10% शेयर नहीं गिरते हैं, वो कोई एक पर्टिकुलर शेयर गिर जाए बात अलग है, हो सकता है वो आईटीसी में हो जाए, आई डोंट नो, हो सकता है,
तो उसके लिए मेरे को 50% पैसा तो मुझे बैंक में मुझे रखना ही रखना है, उस पर भी मेरे को 5 से 6% का मुझे ब्याज मिल रहा है, तो वो भी मेरे ROI में आएगा। बट डेफिनेटली ये जो आपका ROI जो 6.89 है वो पूरा नहीं आएगा, बिकॉज कैश व्हाट यू आर कीपिंग इन द बैंक विल रिड्यूस योर ROI, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आवर टारगेट ये है कि मुझे महीने का 3% मुझे टोटल रिटर्न निकालना है, इंक्लूडिंग माई बैंक इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग माई रेंटल इनकम, इंक्लूडिंग माई एडजस्टमेंट्स। अगर 3% का ROI आपका टोटल कैपिटल पे आप निकाल ले रहे हो, और इफ यू आर वर्किंग ऑन ए टोटल कैपिटल बेसिस, यू आर नॉट ट्रेडिंग ऑन ए इंडिविजुअल बेसिस, यानी कि आपका बिल्कुल फोकस करके काम कर रहे हो। लाइक जैसे अपन कॉर्पोरेट होते हैं ना, अपन बिजनेस जैसे अपन ऑफिस में काम करते हैं कि भाई मेरे को ये 4 का मतलब इतना मुझे सेल करना ही करना है, इतना मेरा टारगेट है। तो अगर आपने टारगेट लिया कि एक ITC, NMDC, BEL और PIL 4 के लॉट ले लिए, ये मेरा पैसा है, इतना मैं ट्रेड करूंगा, यू विल इजीली मेक 2.5 to 3% ROI एवरी मंथ। बट आपको फोकस होकर काम करना है, कुछ नहीं करना। हाँ बोलिए। 2% is also very good actually। हाँ, इसमें मैं अपने एक्सपीरियंस एक ऐड करूंगा। हेलो। हाँ कि सर जैसे आपको मान लीजिए 4 ट्रेड में किसी एक ट्रेड में लॉस हो रहा है, से फॉर NMDC हुआ है 160 से 110 तक आ गया वो। बट जब मैंने 170 में खरीदा था, NMDC 160 आया, मैंने एक ट्रेड में लॉस बुक कर लिया। वो इसीलिए आउट ऑफ 4 ट्रेड में मुझे 3 ट्रेड में प्रॉफिट है, 1 ट्रेड में लॉस है। तो मैं ये माना कि मेरा मैंने रिटर्न ROI जो है 2% ही आया, 3% नहीं आया, एक में मैंने लॉस बुक कर लिया। और उसके बाद री एंटर कर, आप जैसे मैं साल भर में 12 बार करते हैं, हो सकता है 2 बार फंसेंगे, 10 बार प्रॉफिट हो। जिस बार 2 बार फंसे किसी में, बेटर है लॉस बुक कर लीजिए। ये मान लीजिए ये शेयर मेरी किस्मत में नहीं था। अगर आप उसको पालते रहेंगे, जैसे NMDC को जिसने पाला है 170 में, बाद में बीच में 90 तक भी आ गया था 170 है, तो बेटर है आप थोड़ा दिल कड़ा करके एक बार लॉस बुक कर लीजिए उसमें। मतलब एक आप मंथली कर रहे हैं, किसी एक महीने आपको लॉस हो रहा है NMDC में, तो उसको रोल ओवर मत करके बेटर है लॉस बुक कर लीजिए। तो आप ये मानेंगे कि आउट ऑफ 4 ट्रेड मेरा एक ट्रेड फेल हुआ है, 3 ट्रेड प्रॉफिट में है, तो एक ट्रेड का ब्रेक इवन कम हो गया, 2 ट्रेड प्रॉफिट में, एक प्रॉफिट एक लॉस वाला एडजस्ट हो गया। ये स्ट्रेटेजी आप अपनाइए तो राजेश्वर सर एक्चुअली हाँ, लेकिन राजेश्वर सर इसमें हम लोगों ने एक चीज तो किया है ना कि जैसे कोठारी सर ने बोला है कि अगर नीचे आ गया तो हमको प्रॉफिट डिलीवरी ले लेना है। सर वही तो अगर हम डिलीवरी ले लेंगे और मैं वही गलती किया हूँ, मैं कह रहा हूँ ना आपको। NMDC मैंने 170 में डिलीवरी लेके बैठा है, NMDC का 170 का डिलीवरी है मेरे पास। 200 से जब गिरते 170 आया था, मैंने उसको यही वाला स्ट्रगल करके बैठा था। तो सर आइडियली इस वाले बिजनेस प्लान में हम लोग को जो डिलीवरी लेना है, तो हम लोग डिलीवरी किस स्टॉक में लें, किस में नहीं लें, उसको कैसे मतलब देखना है सर? भाई जब आप क्या बोल रहा, आप नहीं आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो डिलीवरी का मत सोचिए। किसी एक स्टॉक में फंसते हैं, उस एक महीने स्किप करके उसको 1-2 महीना देखिए करके। अगर डाउन ट्रेंड में आ गया तो NMDC डाउन ट्रेंड में आया, और भी कई शेयर डाउन ट्रेंड में आ जाते हैं कई बार। आप जैसे TCS को जिसने 4000 रुपए में लेके फंसा होगा, 4000 रुपए से 3100 तक आया था। आप बोलोगे TCS का मैं 3800 का मैंने स्ट्रगल करके बैठा है, और आप 3800 की डिलीवरी लेके बैठे हो, पाल रहे हो उसको 1 साल तक। बेटर है तो मतलब पुट के साइड पे अगर ब्रेक इवन आता है सर, तो पुट के साइड पे ब्रेक इवन आया तो पोजीशन क्लोज करके और बैठ जाना है। एक बार बैठ जाओ, एक महीने लॉस बुक कर लो। आपने पालना शुरू, उसमें ये देख लो, आप उसमें ये देख लो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज आ गया है। अब जैसे IT इंडस्ट्री था, अब IT इंडस्ट्री में इतना ज्यादा नेगेटिव न्यूज आ गया, एट्रिशन का, प्रॉफिट का, डॉलर का, इतने सारे प्रॉब्लम आने लगे। तो जो जैसे राजेश जी बता रहे हैं कि उससे बाहर हो जाओ तो ज्यादा अच्छा है। बट अभी कोई आप जो बोल रहे हैं ना, वो जो कोठारी सर पहले बोल रहे थे, रिटेलर मेंटेलिटी और होलसेलर मेंटेलिटी, ये हमारा रिटेलर मेंटेलिटी है। हम लॉस बुक ही नहीं करना चाहते हैं। सर मैं इसमें एक ही बता दूं आपको, मैं रिटेलर, थोड़ा कोठारी साहब के जो दिए हैं बहुत सही है। रिटेलर 40 साल के उम्र को होने वाले को होना चाहिए। हम जो 60 के प्लस वाले हैं उनको ट्रेडर होना चाहिए, क्योंकि 40 साल वाला आदमी 20 साल उसके पास टाइम है उसको बुक मतलब शेयर को ग्रो होने के लिए। हमारे पास कल का ठिकाना नहीं है, तो आज मैं जितना कमा रहा हूँ तो कमा रहा हूँ। बेस्ट तरीका वही है। तो मैं मैं आपको बता रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस कि मैंने रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगाया था, उसके बाद कोविड आ गया था, 50% हो गया था। अच्छा। मैंने सब प्रॉपर्टी बेच बुझा के फिर घुसा, पूरा लॉस रिकवर किया और प्लस में आ गया।
तो ये रिस्क मैं इसलिए लिया कि मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे थे, पर जो 40 साल का बच्चा है, अगर वो घुसेगा और उसके 5 लाख का इन्वेस्टमेंट पूरा जीरो हो जाता है या फंस जाता है या ब्लॉक हो जाता है, तो उसको नहीं करना चाहिए। उसको जो भी उसके पास इन्वेस्टमेंट कैपिटल है उसका 20% रिटेलर में लगाए, 80% होलसेलर में लगाए अर्न करने के लिए। वैसे भी का छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट है तो करना भी नहीं चाहिए, सही बात है। ये इसके लिए कैपिटल करना नहीं चाहिए, मत करना, इसलिए कैपिटल चाहिए। आपके पास थोड़ा कुशन होना चाहिए सस्टेन करने के लिए। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है कि अपन ने ना वो म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया, निफ्टी 20 में पैसा डाल दिया, इधर पैसा फंसा दिया, फिर वो बैठे रहते हैं इसको लेके, वो डेट फंड में पैसा डाल दिया। तो मेरा ये है कि हाँ, इन सबके बजाय अगर आप फोकस करके या 2-3 शेयर में काम करो, जैसे आईटीसी हो गया या जो आपके अच्छे वाले शेयर्स हैं, तो यू कैन अर्न मच मोर। अब एनएमडीसी इज ए साइक्लिकल स्टॉक, एनएमडीसी इज ए साइक्लिकल स्टॉक। अब ये 110 का अभी 190 भी जा सकता है और वापस 70 रुपए भी आ सकता है, कोई पता नहीं है एनएमडीसी का। लेकिन आईटीसी ऐसा नहीं करेगा, आईटीसी ऐसा नहीं करेगा। सेम चीज टाटा स्टील है, हाँ, आईटीसी नहीं करेगा। हाँ, टाटा स्टील है 1400 रुपए से 900 रुपए आ गया। हाँ, 1400 क्या 1800 से 900 आया था। सिंपली जिसके पास 20 लाख से ऊपर कैपिटल है, जिसके पास 20 लाख से ऊपर कैपिटल है, वो 2 स्टॉक में ट्रेड करे। जिसके पास 40 लाख कैपिटल है वो 4 स्टॉक में ट्रेड करे। आप 10 लाख के कैपिटल में एक ट्रेड करिए, 2 लाख लगाइए, 8 लाख डिलीवरी पे रखिए। बस बस बस। और अगर किसी एक में लॉस, 4 लाख में करिए, एक में लॉस बुक होता है, बुक करके भूल जाइए, 2 महीने बाद घुसिए उसमें, पालिए मत किसी शेयर। 10 में से अगर 3 लॉस होता है और 7 कितना हो रहा है? ठीक है सर। या सर, वन सजेशन, अगर पुट साइड में प्रॉब्लम होगा तो यू कैन गो फॉर ए स्टॉप लॉस। पुट साइड में you can keep a stop loss so that it will go beyond that, it will hit the stop loss. वो भी एक सजेशन है। या वो भी कर सकते हैं कि पुट साइड में नहीं तो आप जो है वो बुल पुट स्प्रेड कर दो, या मतलब एक नीचे वाला पुट खरीद ले लो या स्टॉप लॉस लेकर रख लो। दैट आल्सो यू कैन डू। वो जो आयरन फ्लाई का एक वाला पोर्शन ले लो आप। 1 लाख, हाँ वो सही है। सपोज दिस आईटीसी में अगर 290 का स्टॉप लॉस रख के छोड़ देने का, 20 रुपीज होगा तो यू कैन बेयर सम मोर लॉस 285 और 290, तो उससे ज्यादा मतलब तुम्हारा जो ब्रेक इवन का है वहां पे स्टॉप लॉस हो जाएगा 285 तक। इफ यू वांट टू टेस्ट इट आउट, 285 स्टॉप लॉस लेके छोड़ देने का, कुछ डरने का जरूरत नहीं। सो ऊपर जाएगा तो यू विल लूज द नोशनल प्रॉफिट व्हाट एवर यू आर गोइंग टू गेट इट, बट ये 6% तो गारंटीड है। वैसा करके चलेगा, दैट मे बी हेल्पफुल। या तो ये क्या कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि कभी भी कॉल बेचने में अपने को लॉस नहीं होता है। कॉल अगर आपने ऊपर का बेचा और शेयर ऊपर से और उसके ऊपर चला गया तो अपने को कम से कम वो मैक्सिमम रेंटल जो आपको, वो तो आपको मिलने ही वाला है जो ऊपर वाला जो है। लेकिन जब नीचे जाता है, डिलीवरी लेने में वो प्रॉब्लम है, तो आप नीचे का या तो बुल पुट स्प्रेड कर दो, यानी कि 310 का अगर आपने पुट बेचा है तो 280 या 290 का एक पुट खरीद लो आप, तो आपका बुल पुट स्प्रेड हो गया। और नहीं तो स्टॉप लॉस लगा के रखो। तो ये जो प्रॉब्लम आपको आ रहा है कि मैं डिलीवरी कैसे लूंगा, तो एक तो आपको कैश का जरूरत नहीं पड़ेगा, दैट मीन्स नो मनी रिक्वायर्ड। तो आपका जो स्टॉप लॉस का जो आप सोच रहे हो कि मुझे लॉस हो रहा है, वो एक्चुअल लॉस नहीं हो रहा है, आपने अपना कैपिटल सेव कर लिया। नंबर 2, आपका मार्जिन कम हो जाएगा। ये एडवांटेजेस सारे जो अंजन लुलू साहब जो बता रहे हैं ना, अगर आपने 290 का पुट खरीद लिया तो 2 एडवांटेज है। नंबर 1, आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है दैट विल सब्सटेंशियली रिड्यूस। जो 2 लाख से आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट 1 लाख पे आ जाएगा, नंबर 1 एडवांटेज। नंबर 2, आपको कैश रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने वो पुट रखा हुआ है। पुट आपके पास जो खरीदा हुआ है दैट विल प्रोटेक्ट यू, और ऊपर जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो आपको पूरा पैसे मिलने वाला। सो दैट यू कैन डू इट। अच्छा अंजन लुलू साहब, आप वो ट्रेड डिस्कस करेंगे आपका जो आज मुझसे डिस्कस कर रहे थे? वुड यू लाइक टू डिस्कस? या नो प्रॉब्लम। अच्छा, वो क्या हुआ था, मेरा प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। एक मिनट जस्ट। नहीं, उसमें और एक चीज सर, ये आईटीसी में आपने जो बुल पुट स्प्रेड बताया ना, उसमें ये है कि सपोज आईटीसी फॉल्स डाउन टू 260 या 250, सो द रेट ऑफ फॉल इन कैश इज मोर, मतलब वो लॉस होने का बहुत ज्यादा है उससे। देन यू कैन स्टॉप लॉस में क्या होता है कि वो इमीडिएटली उधर काट के खत्म हो जाता है। द रेट ऑफ लॉस, ओके, डेल्टा जो है, डेल्टा वेरिएशन है, स्टॉक का जो लॉस है वो 100% होगा तो डेल्टा ओनली 50%। तो बुल पुट में जो आपको मिलेगा जो 50% ही मिलता है, 100% नहीं मिलता। राइट। वो एक इशू, वन हैज टू बी केयरफुल। ओके। अच्छा, तो अभी मेरा जो प्रेजेंटेशन पूरा हो गया था। नाउ अगर जो अपने ग्रुप के मेंबर्स हैं, यू मस्ट हैव सीन वन मैसेज फ्रॉम मिस्टर अंजन लुलू साहब
he took one trade on the last Thursday, that is an expiry day. He sold 2 ATM call and put. Then 200 रुपए नीचे का फिर उन्होंने जो है 4 बेचे और उससे 200 रुपए के उन्होंने से 16 बेचे, कॉल और पुट बेचे थे. उसके पर वो अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. This has nothing to do with what my presentation was there. मेरा जो presentation था वो पूरा शॉर्ट शेड्यूल पे था, बिजनेस प्लान पे था. आप वैसे बिजनेस प्लान बनाइए और वैसा करके कीजिए. अंजुलू साहब अपना इंडिसेस में जो उन्होंने वो ट्रेड लिया था उसके ऊपर जो है he want to share his experience. Yes, अंजुलू साहब. Yeah, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि सी द स्ट्रैडल व्हिच आई हैव टेकन, आई गॉट अ प्रॉफिट इन अर्लियर टाइम्स. सेम स्ट्रैडल, सेम पोजीशन आई हैव टेकन बिफोर. मैंने पहले के एक्सपायरी डेट में उसमें पैसा कमाया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. बट ये एक्सपायरी में क्या हुआ कि मेरा एक ही मिस्टेक हुआ कि आई हैव नॉट पुट द स्टॉप लॉस. ट्रेड क्या वो बताइए. नहीं आपने ट्रेड के लिए थे पहले वो बताइए. हाँ, ट्रेड 38,100 का 2 CE और 2 PE लिया, 2 लॉट्स, और 38,000 का देन 4 PE एंड 4 CE लिया, और 37,900 का, मतलब 100 ऊपर का एंड 100 नीचे का. So total lots लिया because I wanted to get more delta on expiry day, more theta, मतलब वो time value ज्यादा चाहिए. Time value 910 का ऊपर मिला था. So time value wise there is no issue. If the market would have been in the same range, 38,100 का plus or minus 100 का points में अगर settle होता तो I would have made profit. But one side swing का वजह से it has suddenly one side swing went up to 750, 800 point down होने की वजह से, since I have not put the stop loss, so the loss was showing up to 9 lakhs, 8 lakhs तक loss दिखा रहा था. बाद में it has recovered. It was recovered up to 6 lakhs. So then I started adjusting. If I don't adjust and it would have continued up to end of the day without any adjustment, I would have made the profit. But the issue is that whether it will come, it will recover or it will continue further down. That was not known to us. So the thought process was that शायद it may go down. 700 पॉइंट नीचे गया, फिर it come up to 500 पॉइंट, 300 पॉइंट ऊपर आया, फिर started going down. That time I started making the adjustment. So that resulted in a loss. So that's how the main lesson I learned from this is that stop loss is a must. Whatever stop loss, if you put it 30% or 50% of straddle, so stop loss होने से it will not further, अगर severe, अगर suddenly 5-6% down में अगर जाएगा तो then you will get a saving from the stop loss. When it's continuous trending move में, suppose one side directional move में क्या होता है कि even if the stop loss, other legs will make you profit. Whatever the stop loss was, suppose you say मैंने 100 rupees में खरीदा straddle, so मैंने put 130 stop loss रखा. अगर एक लेग में 130 में stop loss hit हो गया, दूसरा leg would have gone up to 80 rupees. So there I made 20 rupees profit. If the direction was continuing, the other leg will go to 70, 60, 50. So then I will make a profit anyway. But at least मेरे loss से बच जाता है. So basically what we have to learn from the market is that loss should be minimum, profit should be maximum. So you should give to the market less and take from the market more. So that's the only thing one has to learn. So that for that purpose, you should be clear that so stop loss is a must. Even if you want, you can re-enter it. If any problem is there, re-entering is, you have the option, plenty of option. Today you can re-enter, or next expiry day you can re-enter. But ek bar it severely it hits your stop loss like 9 lakhs and all. Then to recover that 9 lakhs, it will take so much time. Then your psychology gets shattered. So until unless you are not a big trader or you are not happy with it. But I felt one thing, that people who are making a straddle or something, make with the one lot and that to try with the stop loss. Then second thing is that virtual trade, don't do any virtual trading, because if you enter in a water only, you start swimming. Otherwise, तुम virtually कितना भी practice करो, then the emotional effects will not come. So suddenly, suppose if it goes too much down, see the market will hit the stop losses very often. So you should be ready to